بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناولز کاٹیج میں خوش آمدید۔ ہمارے آج کے ناول کا نام ہے میرا خروس ہم سفر اور اس کی رائٹر ہیں یسریٰ شاہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول دوسرے ناولز کی طرح پسند آئے گا۔ ناول شروع کرنے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کا ناول۔ وہ کلاس سے نکل کر منہ لٹکائے اپنی دو سہیلیوں کے ساتھ چل رہی تھی۔ دل اس کا عجیب سا ہو رہا تھا۔ اس کے کالج کا آج آخری امتحان تھا اور پریشانی کالج چھوڑنے کا یا امتحان کے برا ہونے کی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی پریشانی گھیری ہوئی تھی محترمہ کو۔ سفید یونیفارم میں وہ سفید و شفاف جلد، پتلی سی نازک سی لڑکی، بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے اپنی ہی سوچوں میں مگن تھی۔ اے رباب، کیا ہوا؟ ایسے پریشان کیوں ہو؟ وہ تینوں کینٹین کے پاس کھڑی لڑکیوں کی رش میں اس رش کے ختم ہونے کے انتظار میں تھی۔ جب صنم نے اس کو یوں سوچوں میں ڈوبا ہوا دیکھا تو پوچھ بیٹھی۔ رباب نے اپنی چھوٹی سی آنکھوں سے اس کو گھورا، جیسے سمجھ ہی نہ پا رہی ہو کہ کیا جواب دے۔ آج محترمہ کا پرچہ صحیح نہیں ہوا ہوگا نا، تبھی صفیہ نے خود کی سوچی ہوئی وجہ بتائی۔ اس کو کب پرچہ صحیح ہونے یا نہ ہونے کی فکر ہونے لگی بھلا؟ یہ تو چل بندی ہے، ایک دم پرچہ غلط ہو یا صحیح، اس کے ماموں جان بیٹھے ہیں نا اس کو پاس کروانے کے لیے۔ وہ الگ بات ہے کبھی ہماری کوئی سفارش نہیں کرواتی۔ صنم شرارت سے بولی۔ یار ہے بس ایک ٹینشن، کل رات سے پریشان ہوں، کاش یہ انٹر کلاس ختم ہی نہ ہوتی یا امتحان چلتے رہتے۔ رباب ناک چڑھا کر نخوت سے بولی تھی۔ ان تینوں کی آخرکار باری آئی، کیا کھایا جائے آج؟ صفیہ نے کینٹین پر کھڑے ہو کر ان سے مشورہ مانگا۔ سموسے لو اور کولڈ ڈرنکس بھی، میں کہتی ہوں چاٹ بھی لے لو، ویسے بھی آخری دن ہے آج کالج میں۔ صنم نے آج کچھ بھی نہیں چھوڑنا تھا۔ تم بتاؤ مس پریشان، صفیہ نے رباب سے پوچھا۔ یار لے لو کچھ بھی، میرا پیٹ تو ٹینشن نے ہی بھر لیا ہے۔ رباب کافی پریشان تھی۔ وہ تینوں چل کر اب بینچ پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ صفیہ اور صنم کھانے پر ٹوٹ پڑی، جبکہ رباب اپنے ہاتھوں میں اپنا چہرہ رکھے مایوسی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ یار تم لوگ آگے بھی پڑھو گی نا؟ رباب کی بات پر ان دونوں نے پہلے رباب اور پھر ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہاں بھائی، ظاہر سی بات ہے، تمہارا ارادہ نہیں ہے کہ آگے بڑھنے کا؟ صفیہ نے سموسہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ یار میری ڈائن ممانی تو انتظار میں ہے کہ کب میرے امتحان ختم ہو اور کب وہ میری شادی کروائیں۔ رباب کی پریشانی کی وجہ یہی تھی۔ ہائے سچ بتاؤ یار، جلدی شادی کرو تاکہ میں امی سے نئے نئے کپڑوں کی فرمائش کروں کہ دوست کی شادی ہے، قسم سے 2 مہینوں سے ایک جوڑا بھی نہیں لیا۔ صنم چہکتی ہوئی بولی۔ ہاں یار رباب، یہ تو کام پہلی فرصت میں کر لو تم، مجھے تو خوب سارا ناچنا ہے تمہاری شادی میں، خاندان میں بھی ابھی دور دور تک کوئی شادی نہیں، بور ہو جائیں گے، اس لیے چلو تم کر لو۔ صفیہ کو اپنے مزے کی پڑی تھی اور رباب ان دونوں کو منہ کھولے دیکھ رہی تھی، جو اس کی پریشانی نہیں بلکہ اپنی خوشی دیکھ رہی تھی۔ کتنی کمینی ہو تم دونوں، مطلب تم لوگ تو کچھ گھنٹے مزے لے کر چلی جاؤ گی، تم دونوں کے مزے کی خاطر میں اپنی پوری زندگی برباد کر دوں، حد ہے ویسے۔ رباب غصہ کرتی ہوئی بولی۔ یار سوچو نا کہ تمہاری شادی ہوگی، گھر میں تمہیں امپورٹنس دی جائے گی، ڈھیر سارے کپڑے اور زیور ملیں گے تمہیں، بیٹا 8 ہیں تمہارے، شادی کر لے۔ صنم کی بات سن کر رباب نے اس کو گھورا۔ اچھا بچو، ایسی بات ہے تو کر لے شادی۔ یار میں تو کر لیتی پر ابا نہیں مانیں گے نا، ورنہ میں تو لو ابھی ہی تیار ہوں۔ صنم افسوس کرتی بولی۔ کتنی خوش قسمت ہو تم لوگ، آج میرے بھی ابا زندہ ہوتے نا تو دیکھتی میں اپنی ڈائن ممانی کو۔ رباب دکھ بھرے لہجے میں بولی۔ رباب کالج سے آئی اور اپنا بیگ صوفے پہ پھینک کے جوتوں سمیت صوفے پر لیٹ گئی اور اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ یہاں کی سوئی ہوئی ہو، میرا صوفہ خراب ہو رہا ہے، ہٹاؤ اپنے پیر۔ 9 سالہ نادر، جو کہ رباب کی ممانی رخسار کا بیٹا تھا، اس کو جوتوں سمیت صوفے پر لیٹا دیکھا تو چلا کر بولا۔ رباب اس کے چلانے پر تھوڑا سا چہرہ اوپر کیے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ جب دیکھا کہ کوئی نہیں ہے تو واپس سے وہاں اسی طرح لیٹ گئی۔ چل چشماٹو، زیادہ سڑ نہ کھا، رفو چکر ہو یہاں سے، رباب نے اس کو ٹالنے سے انداز میں کہا۔ میں امی کو بتا دوں گا چھپکلی، اگر تم یہاں سے نہیں اٹھی تو۔ نادر نے اس کو دھمکی دی اور اپنی بہن کا سکھایا ہوا نام چھپکلی سے اس کو مخاطب کیا۔ رباب اس کی بات سن کر صوفے سے اٹھ بیٹھی۔ کیا کہا تم نے؟ چھپکلی؟ ہمت کیسی ہوئی تمہاری؟ رباب غصے سے بولی۔ اس کو وہ لفظ بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ ہاں تم چھپکلی ہو، فاریہ باجی کہتی ہے، تم چھپکلی کی طرح چپکو، پتلی سی اور بے حد تنگ کرنے والی لڑکی ہو۔ نادر نے اپنی بہن کا سکھایا ہوا سبق اس کے سامنے دہرایا۔ ابے ایسی لگاؤں گی نا ایک کہ چشمہ 100 فٹ دور جا کر گرے گا تمہارا، اور تم نے خود کو دیکھا ہے؟ 1 روپے والے کا کالے بیکار اور کھوٹے سکے ہو تم، اور تمہاری یہ موٹی بھینس فاریہ باجی سارے گھر کا کھانا تو یہ کھا جاتی ہے اور پھر بھی کہتی ہے کہ میں تو کچھ کھاتی ہی نہیں، پھر بھی پتہ نہیں کیوں موٹی ہوں۔
रुबाब टेढ़ा मुंह बनाए फारिया की नकल करती हुई बोली, रुको, मैं फारिया बाजी को अभी तुम्हारी शिकायत लगाता हूँ। नादिर चश्मा उंगली से ऊपर करता हुआ भागा। रुबाब भी उसके पीछे लपकी। रुक चश्मा, वो शिकायती कबूतर। रुबाब उसको ना रोक पाई तो एक कुशन उसकी तरफ फेंका। नादिर ने सोफे से नीचे जंप लगाया और कुशन सीधा पीछे से आती रुखसार के चेहरे पर लगा। रुखसार ने रुबाब को घूरा। रुबाब ने अपने हाथ अपने मुंह पर रख लिए। वो नादिर की शैतानी मुस्कुराहट बता रही थी कि अब रुबाब की खैर नहीं। सॉरी मुमानी, वो मैं। नादिर अपने कमरे में जाओ, रुखसार रुबाब की बात काटती हुई बोली। नादिर रुबाब को जुबान दिखाता चला गया, पर अभी वो इसको कुछ नहीं कर सकी सिवाय घूरने के। सारा दिन मेरे बच्चों से लड़ती रहती हो, आखिर बिगाड़ा क्या है मेरे मासूम बच्चों ने तुम्हारा। रुखसार सोफे पर बैठी अपनी लिपस्टिक, जो कि काफ़ी ज़्यादा गहरी थी, उसको और गहरा करते हुए बोली। रुखसार को फैशन का बहुत शौक था। हर वक्त ही सजी संवरी रहती थी। बालों का ऊंचा जूड़ा, मेकअप से लबरेज चेहरा, जामनी रंग की लिपस्टिक और काजल से लगाया हुआ तेल, जो कि वो खुद अपने गाल पर लगाया करती थी। रुबाब उसको जब भी देखती उसको स्नो वाइट की सतीली माँ याद आ जाती, जो इसी तरह सच धज के रहती थी और स्नो वाइट पर जुल्म किया करती थी। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। ज़्यादा मत बोला करो मेरे सामने, कितनी बार कहा है, लड़कियाँ अच्छी नहीं लगती ज़्यादा बोलती हुई। अब वो खुद को आईने में देखते हुए बोली। रुबाब ने इसको ख्याली तस्वुर किया। आईने आईने, ये तो बता सबसे शातिर कौन है भला। रुबाब अपनी ही आती सोच पर मुस्कुराई। ज़्यादा हंसी आ रही है तुम्हें, रुखसार अपना पर्स बंद करते हुए बोली। रुबाब वहाँ खड़ी बस लब काटती ही रह गई। आखिरी इम्तिहान था ना आज तुम्हारा, हो गया? जी हाँ। चलो फिर तुम्हारे रिश्ते की बात चलाती हूँ। शमीम ने एक रिश्ता देखा है, बता रही थी। अच्छा रिश्ता है, बड़े घर का भी है। तुम्हारा रिश्ता मांगा था 2 महीने पहले। तुम्हारे मामू ने तुम्हें बताने को मना कर रखा था कि अभी तुम पढ़ रही हो, पर अब तो बस पढ़ लिया। वो लोग कल डेट फिक्स करने आएंगे, ठीक? रुखसार ने रुबाब को और परेशान कर दिया। उसने मुंह बनाए सर हिलाया। कपड़े चेंज करो और लंच बनाओ जाकर किचन में। वो अपने सोने के कंगनों को छूती हुई बोली। लेकिन लंच तो मुलाजमा बनाती है ना, वो हैरत से बोली। आज तुम बनाओगी? नादिर से लड़ने की सज़ा है तुम्हें। रुखसार के कहने पर वो अपने कमरे में जाने लगी। नादिर से लड़ने की सज़ा है? मेरे मासूम बच्चों से क्यों लड़ती हो? मुझे बड़ा शौक है इनके मासूम बच्चों से लड़ने का। जैसे ऐसे कमीने बच्चे पैदा होंगे तो इनसे लड़ूंगी नहीं तो क्या करूंगी। डायन। रुबाब जल्दी जल्दी उसकी नकल उतारती अपनी आग बुझाने की कोशिश करती जा रही थी। आज कोफ्ते भी बनाना रुबाब। ऊपर वाले फ्लोर पे खड़ी फारिया ने उसको आवाज़ लगाई। जी। रुबाब ने सर उठाए ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। उसकी माँ की नौकर हूँ ना मैं, बुलडोज़र कहेंगी। रुबाब बुड़बुड़ाती हुई अपने कमरे में चली गई। रुबाब 6 साल और उसकी बड़ी बहन मरियम 8 साल की थी जब फारूक और जरका का कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था, और तब से हमीद, रुबाब के मामू, ने इन दोनों को पाला पोसा, उनकी जिम्मेदारी ले ली, क्योंकि इन दोनों का अपने माँ बाप के सिवा कोई दूसरा ना था हमीद के अलावा। हमीद जॉब के सिलसिले में अक्सर कराची रहा करते थे, जबकि सारी फैमिली हैदराबाद में मुकीम थी। सिर्फ महीने में 1 हफ्ता अपनी फैमिली को टाइम दिया करते थे। माली हालात काफ़ी अच्छे थे उनके, जिस वजह से वो सबको आराम से खिला पिला सकते थे। उनका एक बेटा नादिर और बेटी फारिया थी। नादिर अभी 3री जमात में था और फारिया इंटर करने के बाद प्राइवेट पढ़ रही थी। उसको इंटर पढ़े 2 साल हो चुके थे। मरियम की इंटर के बाद शादी करवा दी गई थी। फारिया और मरियम एक साथ पढ़ी थी। हमीद ने तो काफ़ी इनकार किया कि अभी मरियम की शादी ना करवाई जाए, पर रुखसार ने उनको ये कहकर मनवा लिया कि पराई लड़कियां हैं, कल को कुछ हो गया तो इल्ज़ाम उन पे आना है, इसलिए इज्जत से उसको अपने घर का कर दे। इससे भी वो भी खुश रहेंगे अपने घर में। मरियम की शादी फराज से हुई थी, जो हमीद के दोस्त का बेटा था, एक कंपनी में जॉब करता था। तनख्वाह इतनी ना थी, पर इन 2 मियाँ बीवी और एक बेटे के लिए काफ़ी थी। रुबाब का 2 महीने पहले एक बड़े घराने से रिश्ता आया था, जो काफ़ी अमीर और इज़्ज़तदार लोग थे। पहले तो रुखसार ने चाहा कि वो उसकी बेटी फारिया ले। उसने कई सारी कोशिशें भी की, पर उन लोगों को रुबाब ही अच्छी लगी थी और इंतज़ार भी करने को तैयार थे। हमीद ने उनको 2 महीने का वेट करने को कहा। अच्छी जान पहचान थी हमीद की उनसे, जो कि कराची में ही रहा करते थे, तो हमीद को ये रिश्ता रुबाब के लिए सही लगा और वो मुतमिन भी रहते थे। इसलिए बददिल होकर आखिर रुखसार को भी मानना पड़ा। शुरू से लेकर ही रुखसार का रवैया दोनों बहनों के साथ ठीक न था। हर घर का काम उनसे करवाया जाता, और जब जब हमीद हैदराबाद आते उनके सामने रुखसार बेगम अच्छा होने की एक्टिंग किया करती। बाकी हमीद का रवैया जैसा अपने बच्चों के साथ था, वैसा ही रुबाब और मरियम के साथ भी। मरियम की शादी भी काफ़ी धूमधाम से की गई और हमीद ने उसको बहुत कुछ दिया, बस कभी कभी रुखसार की चिपड़ी बातों में आ जाया करते थे। रुबाब मुंह बनाए कोफ्ते बना रही थी। स्नो वाइट अब फंस चुकी है, उसकी डायन मुमानी ने उस पर बहुत काम डाल दिए हैं
اور خود کھڑی آئینے کے سامنے آئینے سے پوچھ رہی ہوگی کہ آئینے آئینے یہ تو بتا سب سے شاطر کون ہے بھلا؟ اور آئینہ سامنے سے کہتا ہوگا میری ملکہ آپ، اور پھر ڈائن کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ رباب ہر وقت ہی اپنے دماغ میں اپنی سنو وائٹ اور رخسار ڈائن کی کہانی بناتی رہتی۔ فاریہ کچن میں اس کو تنگ کرنے کے غرض سے آئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے چھپکلی؟ آج تو لنچ بھی تمہیں بنانا ہے پڑا ہے۔ واو! فاریہ کوفتوں کو دیکھتی ہوئی تنزیہ بولی۔ ہاں، بتا تو ایسے رہی ہیں آپ فاریہ باجی جیسے مجھے معلوم ہی نہ ہو کہ میں یہاں کھڑی لنچ بنا رہی ہوں یا ڈنر۔ رباب چولہے کی آگ تیز کرتی بولی اور لفظوں کی آگ فاریہ کو بھی لگ گئی۔ زیادہ بکواس مت کرو، جانتی ہو نا میرے باپ کے ٹکڑوں پر پڑ رہی ہو تم۔ فاریہ دانت پیستی ہوئی بولی۔ تو وہ میرے بھی ماموں لگتے ہیں، سنا آپ نے؟ رباب برا مناتی ہوئی بولی۔ اس کو یہ طعنہ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا جو وہ بچپن سے سنتی آ رہی تھی۔ آئی بری ماموں ہے ہوں۔ فاریہ وہاں سے سیب لے کر نکل گئی۔ بلڈوزر سارے ہی سیب لے جاتی، یہ دو بھی کیوں چھوڑ گئی؟ رباب نے دو بچے ہوئے سیبوں کو دیکھ کر خود کلامی کی۔ ابھی اس کو مزے کے کوفتے کھلاتی ہوں، ساری عمر یاد کرے گی کہ رباب فروخ کے ہاتھ کے بنے کوفتے کھائے تھے۔ رباب نے شرارت سے کہا۔ اوف امی، بہت مرچی ہیں پانی۔ فاریہ نے کوفتے جیسے ہی کھائے اس کی زبان مرچوں سے جل گئی۔ رباب نے اس کو پانی کا گلاس تھمایا اور منہ جھکائے اپنی ہنسی دبانے لگی۔ امی، یہ سب اس رباب نے کیا ہے، جان بوجھ کر اس نے کوفتے اتنے تیکھے بنائے ہیں۔ فاریہ نے رخسار سے شکایت کی۔ نہیں ممانی جان، میں ایسا کیوں کروں گی؟ ملازمہ میرے ساتھ کھڑی تھی، آپ ان سے پوچھ لیں۔ رباب نے ملازمہ پر الزام ڈال دیا۔ رخسار نے ملازمہ کو دیکھا جو پریشان سی کھڑی تھی۔ رباب نے اس کو آنکھیں دکھائیں کہ اس کے حق میں بولے۔ جی میم صاحبہ، میں ان کے ساتھ ہی تھی۔ رباب بی بی نے کچھ نہیں کیا۔ ملازمہ کے کہتے ہی رباب نے چین کا سانس لیا۔ فاریہ، شاید تم ہی مرچوں کی کچی ہو، رخسار نے کہہ کر پھر سے کھانا شروع کر دیا، اور فاریہ رباب کو دیکھتی رہی جو اسی کو دیکھ کر تنزیہ مسکرا رہی تھی۔ رباب نے اس کو چرانے کی خاطر دائیں آنکھ دبائی۔ فاریہ کے رگ رگ میں غصہ دوڑ گیا۔ صبح رباب انگڑائی لیتی ہوئی اٹھی تو سامنے مریم کو دیکھ کر جو اپنے 1 سالہ بیٹے مبین کو کھانا کھلا رہی تھی، رباب کو خطرے کی گھنٹی بجتی محسوس ہوئی۔ آپو تم یہاں اس وقت؟ رباب جمائی روکتی ہوئی بولی۔ اس وقت سے کیا مراد رباب؟ 1 بج رہا ہے، اور آج تمہارے رشتے والے جو آ رہے ہیں تو اس لیے مومانی نے بلایا کہ میں بھی دیکھ لوں کیسے ہیں وہ لوگ۔ مریم نے اس کو اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ آپو، رشتہ والے؟ اوف، ایسا نہ کہیں، میری عمر ہی کیا ہے ابھی کہ شادی کر کے بیٹھ جاؤں؟ رباب پریشان ہو کر بولی۔ رباب، تم اب کوئی بچی تو نہیں ہو؟ مومانی نے ہمیں ساری عمر ہمیں گھر میں رکھا، اب تمہیں بھی چاہیے کہ ان کی بات مانو۔ مریم نے اس کو سمجھانا چاہا۔ مومانی نے تو نہیں، ماموں نے رکھا ہے اپنے گھر میں، مومانی کا بس چلے تو ہمیں ابھی نکال دیں، جیسا کہ وہ بھی کر رہی ہیں، اور میں ماموں سے بات کرتی ہوں نا آپ وہ مان جائیں گے۔ رباب کو رخسار پہ کافی زیادہ تپ چڑھی ہوئی تھی اور اس نے نئی ترکیب سوچی۔ ماموں کا بھی یہی فیصلہ ہے اور شاید وہ تمہاری ضد مان بھی لیں، پھر مومانی تمہارا جینا عذاب کر دیں گی۔ مریم کو رباب کی عقل پر حیرت ہوئی۔ اوف، سنو وائٹ کی کہانی کی سب سے بڑی دشمن تو یہی بنی ہوئی ہے، سب کو اپنے جادو کے جال میں قابو کر لیا ہے، جس میں اب آپو تم بھی آ چکی ہو۔ رباب پر سنو وائٹ کی سٹوری کا کچھ زیادہ ہی اثر تھا۔ اللہ، کتنا بولتی ہو رباب، اب ان کے سامنے مت بولنا اتنا، اور اگر بولوں تو کیا وہ رشتے سے انکار کر دیں گے؟ رباب چہکتی ہوئی بولی۔ رباب، پاگل مت بنو اور مبین کو سنبھالو، میں کچن میں کام دیکھ کر آئی، وہ لوگ راستے میں ہی ہیں، آتے ہوں گے، تم بھی تیار ہو جاؤ۔ مریم مبین کو رباب کو تھمائے چلی گئی۔ اوف، سنو وائٹ کی کہانی میں اب اور مشکلات آنے والی ہیں، اللہ کرے گاڑی خراب ہو جائے ان کی راستے میں ہی اور کوئی ٹیکسی بھی نہ ملے۔ رباب نے من ہی من ان کو بد دعا دی۔ رباب بیڈ پر بیٹھی ہوئی اپنی سوچوں میں گم تھی۔ آج سنو وائٹ کو لوگ دیکھنے آ رہے ہیں، اور سنو وائٹ کافی زیادہ کنفیوز ہے کہ اس کا ہونے والا ہمسفر اس کا ہیرو ہوگا یا کوئی اور ویلن اس کی زندگی میں آنے والا ہے۔ مریم کمرے میں داخل ہوئی تو رباب کو اپنی سوچوں میں گم ہوتا دیکھا۔ پیلے شلوار سوٹ میں ملبوس ریشمی آنچل پھیلا کر پہن لیا گیا تھا، بالوں کو جوڑے میں قید کر رکھا تھا اور آگے سے 2 لٹیں جھول رہی تھی۔ تیار ہو گئی ہو نا؟ بہت پیاری لگ رہی ہو ماشاءاللہ، اور یہ مبین کو پکڑو، مجھے کچھ کام ہے۔ رباب نے مبین کو اس کی گود میں بٹھا دیا۔ نہیں، مجھے نہیں جانا ان لوگوں کے پاس آپو، بس ڈیٹ فکس کرنے آئے ہیں، وہ کر کے چلے جائیں نا وہ لوگ۔ رباب بیڈ گراؤنڈ پکڑے ضدی پن سے بولی۔ یہ وہ لوگ کیا ہیں؟ سسرالی ہیں تمہارے؟ اور رباب، چلو ضد نہ کرو، اٹھو بچہ۔ مریم نے اس بار اس کو پیار سے سمجھایا، اس کو بیڈ گراؤنڈ سے الگ کرنے کی کوشش کی۔ آپو نہیں نا پلیز۔ رباب اور زیادہ چپک گئی گراؤنڈ سے۔ ارے رباب، کیا بچپنا ہے، چلو مومانی جان بلا رہی ہیں تمہیں۔ مریم تھک گئی تھی اس کو یوں کھینچتے۔ وہ ڈائن اپنے بلڈوزر کی تو شادی کروا نہیں رہی، میرے پیچھے کیوں پڑی ہیں؟ اتنا شوق ہے تو پہلے اس گھر پر جس کا بورڈ زیادہ ہے اس مورتی کو چلتا کرے نا۔
رباب کو سب سے زیادہ غصہ رخسار پر ہی تھا۔ رباب ایسا نہیں بولتے۔ مریم نے اس کو گھورا۔ رباب جلدی آؤ، مہمان انتظار کر رہے ہیں، رخسار نے آ کر کہا۔ چلو جلدی سے، مریم نے دھیرے سے رباب کو کہا اور دوپٹہ اس کے سر پر کٹ دیا۔ رخسار وہاں سے چلی گئی۔ وہ دونوں بھی ان کے پیچھے چلی آئیں۔ لاؤنج میں نورین بیگم اور ان کی 2 بیٹیاں طاہرہ اور عائشہ ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں اور اس نازل لڑکی کو دیکھا جو نظریں جھکائے آ رہی تھی۔ سفید چمکتی رنگت، پتلے سے گلابی ہونٹ، چھوٹی مگر گہری کالی آنکھیں۔ وہ لڑکی دکھنے میں نورین بیگم کو کافی پسند آئی۔ آؤ بیٹا، میرے ساتھ بیٹھو۔ نورین نے اس کو اپنے پاس بلا لیا۔ رباب چل کر صوفے پر ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ماشاءاللہ، کافی حسین ہے آپ کی لڑکی، لگتا ہے بہت لاڈوں سے پالا ہے آپ نے اس کو۔ نورین نے مسکراتے ہوئے رخسار بیگم سے کہا۔ ہاں بھائی، اس کے ماں باپ کے بعد ہم ہی تو اس کے اپنے ہیں۔ دونوں لڑکیوں کو بہت پیار سے پالا ہے۔ مجال ہو جو کسی کام کو بھی ہاتھ لگانے دوں؟ نہ بابا، میں تو ان کو کہتی ہوں بس عیش کرو ماموں کے گھر، اپنے گھر ہی جا کر کام کر لینا۔ اب دیکھیں، ہے تو میری بیٹیوں جیسی دونوں ہی، میرا دل نہیں مانتا کہ بچیوں سے کام کرواؤں۔ رخسار کمال کی ایکٹنگ کرتی اپنا امپریشن جمانے میں لگی ہوئی تھی۔ بڑی آئی اپنی بیٹیوں جیسی سمجھتی ہیں، اپنا الو سیدھا کیسے کر رہی ہیں دوسروں کے سامنے۔ واہ مومانی جان، آپ کو تو ایکٹریس ہونا چاہیے، رباب نے اس جھوٹی عورت کو دیکھتے ہوئے دل میں کہا۔ ہاں ویسے میری بیٹی فاریہ ہے نا، کافی سگر ہے، منع کرنے کے بعد بھی کہتی ہے کہ کام کرنا اچھا لگتا ہے، کرنے دیں۔ رخسار نے اب اپنی بیٹی کو اچھا دکھانا چاہا۔ پھر تو ان کے بچے اور شوہر کافی خوش نصیب ہیں کہ ایسی بیوی اور ماں ملی ہے، عائشہ نے فاریہ کو دیکھ کر کہا، جو کافی زیادہ تندرست تھی۔ اس کی بھی بالکل گوری رنگت اور عمر بھی بس رباب سے 2 سال بڑی، لیکن کہیں سے بھی وہ 21 سال کی نہیں لگ رہی تھی۔ تو عائشہ نے خود سے ہی اندازہ لگا لیا کہ اس کے تو بچے بھی ہوں گے۔ عائشہ تھوڑی منہ پھٹ تھی۔ فاریہ نے منہ کھولے اس لڑکی کو دیکھا، وہ اس کو بالکل زہر لگی۔ رباب ہنسی چھپانے کو مزید سر جھکا گئی۔ جی نہیں، یہ رباب سے بس 2 سال ہی بڑی ہے، شادی نہیں ہوئی ابھی اس کی۔ رخسار نے تصحیح کی۔ فاریہ منہ بناتی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ باقی سب مسکراہٹ دبانے لگے۔ ویسے فاریہ بجی چائے بہت اچھی بناتی ہیں، ان کے ہاتھ کی چائے پینا مت بھولیے گا۔ رباب نے فاریہ کو بری طرح پھنسا دیا۔ رباب منہ پھلائے مریم کے بیٹے مبین کو اٹھائے چکر لگا رہی تھی، جو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، بس روئے جا رہا تھا۔ دیکھو اچھے بچے ہونا، چپ کر جاؤ، پیارے ہونا تم مبی۔ رباب نے اس کو بہلانے کی کوشش کی تو وہ اور رو پڑا۔ ٹکلا، بچے ایسے ہوتے ہیں کا، چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ رباب نے چڑ کھائی۔ رباب رو رہا ہے کیا مبین؟ مریم کمرے میں داخل ہوتی بولی۔ دکھ نہیں رہا آپ کو ابو، کب سے میرے کانوں میں چیخ چیخ کر روئے جا رہا ہے، کانوں کے پردے ڈیمیج کر لیے ہوں گے اس نے میرے۔ رباب نے مبین کو مریم کو دیا۔ اف رباب، اس کو بھوک لگی ہوگی نا پاگل، کچھ کھلا دیتی۔ مریم کا بات کا جواب دیے بنا وہ کمرے سے باہر آ گئی اور ٹی وی کھول کر صوفے پہ بیٹھ گئی۔ کیا ضرورت تھی مجھ سے چائے بنوانے کی؟ یہ زیادہ ہوشیاریاں مت دکھایا کرو تم، چھپکلی۔ فاریہ موقع دیکھتے ہی اس پر برس پڑی۔ رباب جو منہ پھیلائے صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی، اس کی بات سن کر رباب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ہنس رہی ہو تم؟ دیکھا نہیں کیسا منہ بنا رہے تھے تمہارے سسرالی میری چائے پی کر، جیسے چائے نہیں زہر پلایا ہو میں نے۔ فاریہ کو اور غصہ آیا۔ ویسے فاریہ بجی، آپ کی چائے کسی زہر سے کم بھی نہیں تھی، آپ کو تو پیسے دینے چاہیے مجھے کہ میں نے آپ کی چائے کا ایک فل مگ پیا، اور اب میں کیا کرتی؟ مومانی آپ کی اتنی تعریف کر رہی تھی، میں نے کہا چائے پی کر دیکھ لی جائے۔ رباب اپنی لمبی سی چوٹی ایک ادا سے پیچھے جھٹکتے ہوئے بولی۔ چھپکلی، زیادہ ہوشیار مت بنو تم، ویسے تمہاری ساس اور نندے کافی چلاک عورتیں لگی مجھے، بچ کے رہنا بابا۔ اب فاریہ نے اس کو بدگمان کرنا چاہا۔ کیوں فاریہ باجی، آپ کو انہوں نے اپنی عمر سے زیادہ بڑا سمجھ لیا اس لیے؟ رباب اس کا ارادہ سمجھ کر واپس اس کو چراتی ہوئی بولی۔ میں تمہیں دیکھ لوں گی۔ فاریہ غصے سے اٹھ کر چلی گئی۔ ہاں تو ابھی دیکھ لے بلڈوزر، آپ کے سامنے تو بیٹھی ہوں۔ رباب واپس سے ٹی وی دیکھنے لگی۔ جاؤ جا کر چائے بنا کر لاؤ، تمہاری بہن سے تو کوئی کام ہوتا نہیں، اپنے بچے کے ساتھ ہی لگی پڑی ہے۔ رخسار خفا ہوتی ہوئی آئی اور رباب سے ریموٹ لے کر دوسرا چینل لگا دیا۔ رباب نے اس کو خار خطی نظروں سے دیکھا۔ جاتی ہوں چائے بنانے۔ رباب کچن کی طرف بڑھ دی۔ فیوریٹ ڈرامہ چل رہا تھا میرا، ریپیٹ میں بھی نہیں دیکھنے دیتی ڈائن۔ اوف، دیکھ رہے ہیں آپ لوگ سنو وائٹ پر کتنے ظلم ہوتے ہیں، وہ چند منٹ بیٹھ کر ٹی وی بھی نہیں دیکھ سکتی۔ رباب بری طرح سے جھنجھلائی تھی۔ مریم مبین کو کھانا کھلا رہی تھی جب رباب اس کے ساتھ بیٹھی اور اس کے گرد اپنی باہیں پھیلا دی۔ میری پیاری آپو جان، کیا کام پڑ گیا اب؟ مریم سمجھ گئی اس کا کوئی کام اٹکا ہے۔ میں اب زیادہ مکھن نہیں ماروں گی، یہ بتائیں ڈیٹ کیا فکس ہوئی؟ رباب اس سے الگ ہوتی ہوئی بولی۔ مریم اس کو دیکھ کر مسکرائی۔ بس 2 دن میں ماموں جان آ رہے ہیں، پھر فنکشن شروع ہو جانے ہیں اور ٹھیک 8 دن بعد رخصتی۔ 8 دن؟ بس اتنی کم دن؟ میرا رزلٹ تو آنے کا ویٹ کرتے آپ لوگ۔ رباب حیران ہوئی۔ اب رزلٹ میں تو کافی دیر ہے، اب رزلٹ تم اپنے سسرال دیکھ لینا، ویسے بھی ان کو ماموں جان نے پہلے ہی بہت پینڈنگ میں رکھا ہے، اب وہ دیر نہیں کرنا چاہتے۔
ओफ आपो चुप करे, मुझे टेंशन होती है शादी का सोच कर ही। नए घर में एडजस्ट कैसे करूँगी अल्लाह। रुबाब सर हाथों में थाम के बैठ गई। सब कुछ ठीक हो जाएगा, देखना। वो लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे तो आंटी भी बहुत स्वीट लगी। मरियम मुस्कुराते हुए बोली। अच्छा, और आंटी का बेटा वो कैसा है? अच्छा दिखता है? कोई पिक्चर है आपके पास? रुबाब एक्साइटेड होती हुई बोली। ये बता रही हूँ कि हैंडसम बहुत है दिखने में, और पिक्चर तो मेरे पास कोई नहीं, मुमानी के फ़ोन में देखा था। मरियम ने आंख मारते कहा। अच्छा पकाना, ऐसा ना हो कि फराज भाई जैसे हों, गपलू से टमी निकली हो, बड़ी सी मूछें और बस साइड से थोड़े से बाल, बाकी गंजे। रुबाब ने टेंशन में आकर कहा और मरियम के शोहर का मजाक उड़ाया। शर्म कर लो रुबाब थोड़ी सी। मरियम को अपने शोहर का लिए मजाक बर्दाश्त नहीं हुआ। हाय हाय, मोहतरमा गुस्सा हो रही हैं, इनके शोहर को कचाना बोल दिया। रुबाब शरारत से उसको चिढ़ाती हुई बोली। तुम्हें भी लगेगा बुरा एक दिन जब कोई तुम्हारे शोहर का मजाक उड़ाएगा, देखना बेटा। मरियम उसके सर पर चिपत रसीद करते हुए बोली। अच्छा, वैसे नाम क्या है उनका? शान मलिक। ओह, तो स्नो वाइट की ज़िंदगी में उसका प्रिंस आने वाला है। शान मलिक नाम तो काफ़ी सुबर है, अल्लाह करे दिखने में भी अच्छा हो, बिल्कुल हीरो जैसा, वरना ऐसा ना हो कि वो बदतमीज़ सफ़िया और सनम मेरा मजाक बनाना शुरू कर दें। इज़्ज़त का सवाल है भाई, पर प्रिंस क्या वाकई में होते हैं? रुबाब सीढ़ियों पर बैठी अपने दुपट्टे के साथ खेलती हुई सोचे जा रही थी। इसी दौरान नादर सीढ़ियों से भागता हुआ आया और रुबाब का हाथ कुचलता हुआ चला गया। आह, रुबाब कराही। नादर ने एक शैतानी मुस्कुराहट उछाली। अंधे हो, देख कर नहीं सकते? ओह सॉरी, तुम तो वाकई अंधे हो, चश्मिश कहीं के। रुबाब गुस्से से बोली और अपना हाथ से हिलाया। सफ़ेद हाथ पर लाल निशान पड़ चुका था। छिपकली, अपने लेम जोक्स मारना बंद करो, कोई नहीं हंसने वाला। नादिर अपना बाल हाथों में घुमाता हुआ बोला। तुमसे किसी ने पूछा? शैतान कहीं के, दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों से, वरना ऐसा मारूंगी ना कि सारी उम्र इन सीढ़ियों पर से उतरने चढ़ने के लायक नहीं रहेगा। तो रुबाब पूरी लाल पड़ चुकी थी गुस्से से। नादर ने उसको बॉल दे मारी जो कि रुबाब के सर पर लगी और खुद हंसता हुआ वहाँ से निकल गया। रुबाब अपने सर पर हाथ रखती हुई उठकर उसको अच्छी सुनाने वाली थी, पर दरवाजे पर खड़े हमीद साहब को देखकर चुप हो गई, जो नादर की हरकत देख चुके थे और अब उसी को घूर रहे थे। मामू जान कैसे हैं आप? रुबाब दौड़कर उनसे गले लगी। मैं तो ठीक हूँ, पर शायद नादर का दिमाग ठीक नहीं है। क्या हरकत थी ये नादिर? हमीद नादर से बोले जो सर झुकाए खड़ा था। रुबाब ने नादर की शामत आती देखी तो एक शैतानी तरकीब उसको सूझी। मामू, मैंने तो बस इसको कहा था कि मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी, तो ये नाराज़ हो गया। 5 वाली नहीं 10 वाली दो, और बॉल मेरे सर पर दे मारी। अभी भी दर्द हो रहा है मामू जान। रुबाब अपने सर पर अपना हाथ रखती मासूमियत से बोली। नादर तो हैरान होकर उसको देख रहा था, जिसने बड़ी सफाई से सारा इल्ज़ाम उस पर डाल दिया। अब्बू ये झूठ बोल रही है, कितनी झूठी हो तुम। नादिर सख्ते से बोला। खामोश हो जाओ नादिर, मैंने देखा है कैसे तुमने बच्ची के सर पर बॉल मारी है, और तुमसे बड़ी है ये, इससे आप कहकर मुखातिब किया करो, आई समझ। आइंदा मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। हमीद उसको डांट कर रुबाब के सर पर हाथ रखे वहाँ से निकल गई। अच्छा सबक सिखाया ना, ये सज़ा मेरा हाथ कुचलने की थी, और जो तुमने मेरे सर पर बॉल मारी है ना, उसका बदला अभी बाकी है। रुबाब उसको ज़ुबान दिखाती वहाँ से उछल कर चली गई। फारियाबाजी से ही कहती हैं, छिपकली है ये, चिपकू और तंग करने वाली। जंग अभी जारी है। नादिर भी खुद से बड़बड़ाया। रुबाब सुबह सुबह लॉन में टीपिंग रंग के शलवार सूट में मलबूस लंबी चोटी बनाए नादर से बहस करने में लगी थी। तुमने अब अगर मुझे छिपकली कहा ना, तो खोटे सिक्के नाली में फेंक दूंगी तुम्हें, और तुम जितने हो ना, तुम वहाँ से मिलोगे भी नहीं। रुबाब नादर का कान खींचती हुई बोली। नादर ने अपना पैरों में पड़ा फुटबॉल उठाकर उसको ज़ोरदार किक मारी और बॉल रुबाब के घुटनों में जा लगा। खोटे सिक्के। रुबाब उसका कान छोड़कर अपना घुटना सहलाने लगी और इसके पीछे दौड़ती। इससे पहले बाहर का दरवाज़ा बजा। बाद में सबक सिखाती हूँ इसको। वो दुपट्टा गले में ठीक करती दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, उसको एक मगरूर शख्स दिखाई दिया। एक गंदमी रंगत वाला हट्टा कट्टा लंबे कद का मालिक, हल्की सी शेप, तरतीब से बने बाल और आंखों पे सन ग्लासेस लगाए हुए थे। वो ट्रैक सूट में था। हाय कितना हैंडसम है, बिल्कुल मेरे ख्वाबों के प्रिंस जैसा। रुबाब ने उसको देखते हुए सोचा। हट कमीनी, क्या सोचे जा रही हो? अब रिश्ता हो गया है तुम्हारा। रुबाब ने अपनी सोचों को लगाम दी। वो लड़का दरवाज़ा खोलते ही अंदर की तरफ घुसा और उसके पीछे 2-3 आदमी टोकरियों में कुछ सामान लिए अंदर दाखिल हुए। रुकिए रुकिए, कौन है आप और ऐसे कैसे घर में घुस आए हैं? और ये टोकरे, इनमें कोई बम छुपाया हुआ है क्या? तुम किडनैपर हो? किसी को किडनैप करने आए हो? रुबाब रवानगी से हैरान होते हुए बोली कि जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। वो शख्स अंदर घुस आया। फिर रुबाब जो अंदाजे लगा सकती थी उसने लगाए, जबकि अंदाजे सभी बेवकूफ़ाना थे। मैं कोई किडनैपर नहीं हूँ, वो शख्स अपने ग्लासेस उतारता हुआ इत्मीनान से बोला। रुबाब ने उसकी आंखें देखी, गहरी काली और संजीदा।
तो क्या कोई चोर हो? वैसे लगता तो नहीं कि तुम्हें चोरी करने की ज़रूरत है, अच्छे खासे ख़ानदान के लगते हो। रुबाब उसका हुलिया देखते हुए बोली, एक नाम नोट करो। वो शख्स बिना रुबाब की तरफ देखता हुआ संजीदगी से बोला और अपना एक एयरफोन कान से निकाला। है क्या मतलब? रुबाब हैरान हुई। अजीज़ मेमन एक माहिर न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उनसे अपना दिमाग का इलाज करवा लेना। वो आराम से कहकर तीखे तेवर लिए वहाँ से निकल गया और रुबाब मुँह खोले इस मगरूर शख्स को देखेगी जो इतनी बदतमीज़ी कर गया था। दिखने में ही प्रिंस था ये तो, बाकी अंदर से पूरा विलन। रुबाब उकताहट से बोली, आप लोग कौन हैं और यहाँ कैसे? रुबाब ने उसके एक आदमी को जाता हुआ देखा तो पूछ बैठी, जो उस शख्स से पीछे बाहर निकले थे। जी ये हमीद साहब का घर है ना, हम मिठाई लाई थे बेगम साहिबा के कहने पर। वो आदमी कहकर चला गया, शायद वो सभी बहुत जल्दी में थे। अच्छा, मामू जान के होंगे कोई दोस्त, हमेशा ही मिठाई भेजते रहते हैं, लेकिन इस तरह तो कभी नहीं कि लोग टोकरी लेकर अंदर ही आ गए बिना इजाज़त से, वो भी। खैर मेरा क्या, कोई होगी अमीर पार्टी। वह कंधे उचकाती हुई वहाँ से चली गई। वो टहलती टहलती लाउंज में गई तो वहाँ उसको फारिया और नादिर मिठाइयों पर टूटते हुए नजर आए। नादिर तुम मत खाओ, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि तुम्हारा भी खाना शायद फारिया बाजी को ही लग जाता है। रुबाब वहाँ से कहकर भाग गई और दोनों भाई बहन बेचुताब खाते रह गए। रुबाब की मेहंदी आज हो गई थी और वो कमरे में बैठी अपनी मेहंदी सुखा रही थी, जो कि बाहों तक भरी हुई थी। वो अपने हाथ की खूबसूरत डिज़ाइंस देख रही थी। शायद उसने मेहंदी तकरीबन 10 साल बाद लगाई थी, क्योंकि रुखसार उसको किसी भी किस्म का फ़ैशन वगैरह नहीं करने देती थी, ना मेहंदी, ना हेयर कटिंग, ना कोई मेकअप वगैरह। इसलिए कि वो जानती थी रुबाब खूबसूरत है और अगर वो सच सच के घूमेगी तो उसकी बेटी फारिया को कौन देखेगा, जो हर वक्त टिप टॉप तैयार रहा करती थी। स्नो वाइट अब बस कुछ ही दिन की इस घर में मेहमान है। स्नो वाइट याद करेगी इस घर को, यहाँ तक कि नादर और उस बुलडोज़र को भी। कहानी के विलेंस को कौन भूल सकता है भला? पर स्नो वाइट की ज़िंदगी बहुत अनरोमांटिक है। उसने अभी अपने हमसफ़र प्रिंस को देखा ही नहीं। ओह स्नो वाइट, तुम्हारी नादर जैसी खोटी किस्मत। वो अपनी मेहंदी को देखते हुए सोच रही थी। नादर और फारिया किसी शैतानी इरादे से उसके कमरे में आए। रुबाब ने उनकी आमद पर दोनों को देखा, जिनके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट छाई हुई थी। रुबाब को दाल में कुछ काला लगा। मेहंदी तो अच्छी है रुबाब। फारिया उसके पास बैठी मेहंदी देखते हुए बोली, पता है मुझे। रुबाब उसको देखते हुए बोली। वो समझती थी कि वह हरगिज़ उसकी तारीफ़ करने या किसी नेक इरादे से नहीं आए थे। अच्छा, शान भाई का नाम लिखा है, दिखाओ। फारिया उसकी भरी भरी मेहंदी में कुछ तलाश करती बोली, हाँ है ना, ये देखें इस बेल के सामने। रुबाब शान का नाम सुनते ही एक्साइटेड होती बोली और उसको अपनी मेहंदी में शान का नाम दिखाया। अरे नादिर देखो, शान भाई का नाम भी है। फारिया के कहने पर नादिर ने भी मेहंदी में देखा और नादिर मेहंदी देख रहा था तो फारिया ने जानबूझकर उसको धक्का दिया, जो वो पहले ही सोच कर आए थे। और रुबाब ने इन दोनों का इरादा समझकर हाथ पीछे से जल्दी से पीछे कर लिया। फिर भी उसकी मेहंदी में साइड का एक फूल खराब हो गया। रुबाब की आंखें फटी की फटी रह गई और वो दोनों अपना काम करके वहाँ से निकल गई। ये क्या किया मामू जान? वो चिल्लाती हुई उनके पीछे आई और हमीद को आवाज़ लगाने लगी। वो इसकी चिल्लाती आवाज़ सुनकर जल्दी से अपने कमरे से बाहर आए। क्या हुआ रुबाब, सब ठीक है ना? हमीद परेशानी से बोले। मामू जान, फारिया बाजी और नादिर ने मेरी मेहंदी ख़राब कर दी, वो भी जानबूझकर देखें। वो अपनी मेहंदी दिखाती हुई बोली और अब नादिर और फारिया की शामत आनी थी। हमीद नादिर और फारिया को सुनाए जा रहे थे और रुबाब बड़े मज़े से दोनों की इज़्ज़त अफसाई होती देख रही थी। रुखसार ने मन ही मन सोच लिया कि कल का सारा काम रुबाब से करवाएगी। हाय मेरी किस्मत, इतनी आम सी शादी हुई मेरी। कहानी में कोई ट्विस्ट ही नहीं आया। क्या मज़ा है ऐसी आम शादी का, ये तो हर किसी की होती है। रुबाब बच्चों की तरह रोए जा रही थी और मरियम परेशानी से कब से उसको समझा रही थी, जबकि पास बैठी फारसिया मुसलसल हंसे जा रही थी, उसका मजाक बना रही थी। तो तुम कौन सी खास हो जो शादी भी खास हो तुम्हारी? आम सी लड़की हो, आम सी शादी होगी, पर बदकिस्मती से शोहर हैंडसम मिल गया है तुम्हें बस। फारिया ने फिर से उसका मजाक बनाया। आप तो चुप करो बुलडोज़र, अल्लाह करे आपको तो शोहर भी कोजा मिले। रुबाब उस पर चिल्लाई, बाहर में जाओ, मैं तो चली डांस करने। फारिया मज़े लेते हुए उठ खड़ी हुई, ख्याल से कहीं स्टेज वेज न तोड़ देना। रुबाब ने इसी तरह रोते हुए भी उसको ना बख्शा। सफ़िया सनम, इसको संभालो, मैं मेहमान देख कर आई। मरियम वहाँ से उठकर चली गई। चल रुबाब, अब रोना बंद कर, आज तो तेरा खुशी का दिन है यहाँ। सनम ने शरारत से कहा, खुशी का दिन? हाय कैसी खुशी, कोई ड्रामेटिक टाइप की शादी होती या तो रहती, ये कैसी शादी हुई? शादी से पहले कोई रोमांस ही नहीं, ना ही होने वाला का मुँह देखा है, पता नहीं कैसा दिखता होगा कमबख्त। रुबाब ने अपना सर पीटा, अभी रोमांस तो शादी के बाद ही शुरू होना है। सफ़िया के कहते ही सफ़िया और सनम ने ताली मारी और हंसने लगी। नाली में जा गिरो तुम लोग। रुबाब उन पे लानत भेजती हुई अपना शरारा संभालती उठी। कमीनियों, लाइनर बिगड़ गया है, वो ही ठीक कर लो, किसी को
किसी को कम अजाया करो। रुबाब खुद को आईने में देखते हुए उन दोनों से बोली। किसी तो काम आ जाया करो। रुबाब खुद को आईने में देखती हुई उन दोनों से बोली। रुबाब रुखसत होकर अपने ससुराल में बैठी थी। घर काफ़ी बड़ा था शान का, और घर में कम ही लोग थे। बस उसकी 2 बहनें, एक माँ और 2-3 मुलाजिम। शान के वालिद 8 महीने पहले वफात पा चुके थे, इसलिए अब शान ही सारे घर का सरबराह था। रुबाब उन सबके दरमियान अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। सिर्फ नूरीन बेगम, ताहिरा और आयशा ही वहाँ मौजूद थीं, और शान मलिक था कि अभी तक ज़ाहिर नहीं था। रुबाब को अभी तक अपने शोहर का चेहरा देखना नसीब नहीं हुआ था। बेटा तुम आराम करो, अपने कमरे में, थक गई होगी ना, नूरीन बेगम रुबाब को बोली, जो शुरू से ही उनसे काफ़ी शफ़क़त से पेश आ रही थी। अब इनको क्यों थकना है भला, सारे फंक्शन में बस बैठी ही तो रही हैं। आयशा ने अपनी आदत से मजबूर होकर उस पर तंज किया। आयशा, आज तो खामोश हो जाओ और मैं आती हूँ। शान को फ़ोन करो ज़रा, कहाँ रह गया है पता नहीं। नूरीन उसको डांटती हुई वहाँ से चली गई। शान को फ़ोन मिलाने स्नो वाइट की एक फाड़िया से जान छूटी तो दूसरी पल्ले पड़ गई। रुबाब ने आयशा को देखते हुए सोचा, शान भाई तो पता नहीं कहाँ गायब है, अभी तक नहीं है, शायद आने का दिल ही नहीं कर रहा उनका। आयशा ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए एक और तंज उछाला। आयशा, ये तंज करना छोड़ दो, शान भाई अपने दोस्तों के साथ मसरूफ़ होंगे, आते ही होंगे बस। ताहिरा आयशा को डांटती हुई बोली। वो आयशा के बरक्स काफ़ी सुलझी हुई थी, और रुबाब, वो तो बस सर झुकाए इन दोनों की बातें सुन रही थी। वैसे शान भाई की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुई है ये शादी, इसलिए ज़्यादा नखरे उठवाने का सोचना भी मत, गुस्से के काफ़ी तेज़ है भाई। आयशा ने मुस्कुराते हुए ज़हर उगला। रुबाब ने उसकी तरफ हैरत से देखा और फिर ताहिरा को देखा। आंखों में सवाल था कि क्या वाकई ये सच है। मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होती तो वो शादी ही क्यों करते, बस अरेंज मैरिज है, और अरेंज मैरिज तो ऐसी ही होती है, तुम टेंशन ना लो रुबाब। ताहिरा ने उसको प्यार से समझाया। वो रुबाब को बिल्कुल मरियम की तरह लगी। वैसे भी शादी कौन सा मेरी भी मर्ज़ी से हुई है, कहाँ मैं लव मैरिज के ख्वाब देखती थी, पर स्नो वाइट के पल्ले पड़ गई ये अरेंज मैरिज। रुबाब ने मन ही मन सोचा। रुबाब अपने कमरे में बैठी थी। काफ़ी इंतज़ार के बाद जब शान नहीं आया तो वो टीवी खोलकर बैठ गई और वहाँ पे कार्टून चैनल लगाया। बड़े शौक़ से वो देखने लगी। तकरीबन आधे घंटे बाद शान आया और कमरे में आते ही उसने अपनी बीवी को दुल्हन के जोड़े में कार्टून देखते हुए पाया। उसका तो दिमाग ही चकरा कर रह गया। कमरे में सिर्फ टीवी की ही रोशनी थी और रुबाब की पुश्त शान की तरफ थी। वो ठीक तरह से उसका चेहरा नहीं देख पाया था अभी तक। शान ने उसको अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए सारी लाइट्स ऑन की कमरे की। रुबाब ने चेहरा मोड़कर उसको देखा, और जैसे ही दोनों की नज़रें आपस में टकराईं, तुम दोनों एक साथ बोले, मेरा मतलब है आप। रुबाब ने अपनी ही तस्दीक की और शान को देखा, जो तीखे तेवर लिए उसी को देख रहा था। वही गंदमी रंगत, काले घने बाल, हल्की सी शेव और गोल्डन कुर्ता। प्रिंस, ये तो वही है जो स्नो वाइट को पसंद आए थे, मतलब यही स्नो वाइट के प्रिंस हैं। वाह, रुबाब ने मन ही मन में सोचा, ये वही था जो उस दिन गेट पर आया था और बिना इजाज़त अंदर भी घुस आया था अपने आदमियों के साथ मिठाई लेकर। वो दोनों ही एक दूसरे को पहचान गए थे, पर रुबाब के चेहरे पर खुशी तो शान के चेहरे पर उकताहट थी। तुम रुबाब हो? शान ने हैरत से सवाल किया। आप शान हो? रुबाब ने खुशी और हैरत से पूछा। मेरी शादी तुम सरफिरी से हुई है, या अल्लाह, कहाँ फंस गया हूँ। शान ने खुद से बुड़बड़ाया और बेड की दूसरी साइड पे आके बैठ गया। आपो ने कहा था कि दूल्हा के सामने शर्माना और ज़्यादा बात न करना। रुबाब को मरियम की बात याद आई। वो सीधी होकर बेड पे बैठी दुल्हन की तरह और शर्माने की कोशिश करने लगी। शान ने उसको अजीब सी नज़रों से देखा, जो पहले बड़े मज़े से बैठी थी, अब अचानक दुल्हन की तरह बैठ गई और आंखें नीचे की मुस्कुरा कर शर्माने भी लगी। तुम्हारे दिमाग का स्विच वाकई उड़ा हुआ है क्या? शान ने उसके एक नज़र देखकर कहा और अपनी वॉच उतार कर टेबल पर रख दी। आप कहना चाहते हैं कि मैं पागल हूँ? रुबाब ने गुस्से से कहा। शान ने पहले टीवी की तरफ देखा जहाँ कार्टून चल रहे थे और बाद में रुबाब को देखा। नहीं, पागल बहुत छोटा लफ्ज़ है, शान ने तेवरी चढ़ा कर कहा। कंट्रोल रुबाब, कंट्रोल, इनसे लड़ना नहीं तुम्हें। रुबाब ने अपना गुस्सा कंट्रोल करना चाहा। शान बेड पर उसके थोड़ा सामने होकर बैठा। रुके रुके, मैं घूंघट करूँ फिर आप उसको उठाना, मैंने देखा है ड्रामों में ऐसा होता है। रुबाब ने जल्दी से कहकर घूंघट कर लिया। तुम्हारे मामू और मुमानी पर केस करना चाहिए मुझे, शान ने उकताकर कहा और बेड से उठ गया। हैं, क्या मतलब? रुबाब ने अपना घूंघट उठाकर कहा। बच्चों की शादी नहीं करवानी चाहिए। शान जी कहता हुआ वहाँ से उठ गया। मैं बच्ची हूँ, आपका मतलब? रुबाब ने अपना घूंघट उठाकर शान को देखते हुए कहा, जो अलमारी से कपड़े निकाल रहा था। एक बार में सुनाई नहीं देता क्या, जो बार बार मतलब पूछती हो? शान उकताहट से बोला। रुबाब उसको गुस्से से घूरने लगी। ये लो मुँह दिखाई। शान ने एक डब्बी उसकी तरफ उछाली और वॉशरूम में घुस गया। ऐसे देते हैं मुँह दिखाई? शर्म नाम की कोई चीज़ है भी कि नहीं? रुबाब इस डब्बी को खोलती हुई दांत पीसती बोली। स्नो वाइट के लिए सोने की अंगूठी?
डायमंड की होनी चाहिए थी ना, वो बस मुर्दगी से बोली। घूंघट तो उठा लेते, इतना प्यार से किया था। खरूस। रुबाब ने तंग आकर अपना दुपट्टा ही उतार कर रख दिया। रात का पता नहीं कौन सा पहर था जब शान की आंख खुली किसी के जोरदार खर्राटों की आवाज़ से। शान ने मुड़कर देखा तो रुबाब बड़े मज़े से सोई खराटे मार रही थी। खराटे लेना बंद कर दो, मुझे नींद नहीं आ रही, शान ने उसको झंझोड़ते हुए कहा। जी जी क्या हुआ? स्नो वाइट ने कुछ नहीं किया। रुबाब बौखलाकर उठ गई। अपनी कार्टूनी दुनिया से बाहर निकलो, और ये खराटे अब लिए ना तो मैं तुम्हें कमरे से बाहर निकाल दूंगा। शान गुस्से से बोला। अब खराटे आ रहे हैं तो रोक तो नहीं सकती इनको। रुबाब बेबसी से बोली। रोकना पड़ेगा, अब आई समझ? शान ये कहता हुआ वापस से सो गया। रुबाब सोचती रही कि कैसे खराटे रोक के जा सकते हैं। जब कोई तरकीब उसको नहीं सूझी तो लापरवाही से कंधे उचकाकर सो गई, और रात भर शान को अपने कानों पर तकिए रखकर ही सोना पड़ा। उठो उठो भी। शान कब से उसको उठाने की कोशिश कर रहा था, पर वो मोहतरमा तो काफ़ी गहरी नींद में थी। शान को नरीन बेगम ने कहा था कि रुबाब को उठा कर ले। क्या है? रुबाब खफकी से बोली। आंखें अभी तक उसने नहीं खोली थी। घोड़े बेचकर सोई हुई हो क्या तुम? उठो जल्दी से, मम्मी बुला रही हैं तुम्हें। शान ने उसको ज़ोर से झंझोरा, जो उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब तो डाइन भी नहीं है यहाँ, अब क्यों स्नो वाइट को तंग कर रहे हो आप? रुबाब यह कहकर कंबल सर तक ओढ़े फिर से सो गई। डाइन? स्नो वाइट? शान को उसकी बातें समझ न आई। शान ने उसको 2 मिनट तक देखा और फिर साइड टेबल पर पड़ा हुआ एक जग देखा जो ठंडे पानी से भरा हुआ था। शान ने वो उठाकर सारा पानी रुबाब पर उंडेल दिया। रुबाब बौखलाकर उठी। एसी की ठंडक में वो ठंडा पानी वो बिल्कुल काम गई। ये क्या किया? ऐसे कोई उठाता है क्या? नॉर्मल तरीके से नहीं उठा सकते? उफ, सर्दी हो रही है। रुबाब ने गुस्से में आकर कहा। नॉर्मल इंसानों को ही नॉर्मल तरीके से उठाया जाता है। शान भी कर रहे तेवरों के साथ बोला। रुबाब ने उसको घूरा और घूरती ही रह गई। ये घूर किसको रही हो तुम? शान ने सख्त लहजे में कहा। उसको आज तक किसी ने इस तरह नहीं घूरा था जिस तरह आज रुबाब घूर रही थी। यहाँ पर जो सारी फौज खड़ी है उसको घूर रही हूँ। रुबाब ने इसी तरह उसको घूरते हुए कहा। शान ने भी उसको घूरा। जाहिर है कमरे में आप ही खड़े हैं, आपको ही घूर रही थी मैं। रुबाब तेज़ आवाज़ में बोली। चिल्लाओ मत मेरे सामने, कैंची की तरह जो ये ज़ुबान चलाती हो ना, काट कर फेंक दूंगा। शान ने उसको उंगली उठाकर वार्न किया। रुबाब अब थोड़ी सहम गई, पर फिर भी चेहरे पर ज़बरदस्ती गुस्सा लाने की कोशिश करने लगी। वो अपना डर उसके सामने जाहिर नहीं होने देना चाहती थी। शराफत से यहाँ से उठो, जाओ और तैयार होकर नीचे आओ, और हाँ, अपनी बेकार खोपड़ी से ये बात निकाल मत देना। शान कहता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। हाँ, सब स्नो वाइट पर ही अपना जोर चलाओ। बेचारी स्नो वाइट ही बची है ना कि सब उस पर गुस्सा करे। अल्लाह, क्या इस खरूस में फंसा दिया बेचारी स्नो वाइट को। काश मैं किसी जंगल में खो जाऊँ और कुछ बोने मुझे उठा कर ले जाएं और बिल्कुल स्नो वाइट की तरह मेरी खिदमत करें। रुबाब रोती शक्ल बनाती खुद से बुड़बड़ाई। वो नीचे आई और सबको सलाम करती हुई टेबल पर शान की कुर्सी के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। रुबाब ने टेबल पर सजे लवाजमात पर नज़र घुमाई जहाँ काफ़ी सारी डिशेस बनी हुई थी। क्या कोई मेहमान आ रहा है? रुबाब ने इन डिशेस को देखकर कहा। नहीं बेटा, नूरीन बेगम मुस्कुराती हुई बोली। तब क्या किसी शादी से खाना आया है? रुबाब के कहते ही आयशा ज़ोर से हंस पड़ी। रुबाब की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने कभी अपनी टेबल पर इतनी डिशेस नहीं देखी शायद। आयशा ने उसका मजाक बनाया। आयशा, मैं दोबारा तुम्हें ऐसे किसी का मजाक उड़ाता हुआ ना देखूं। शान ने उससे सख्त लहजे में बाबर करवाया। आयशा उसकी बात सुनकर सर झुकाए खाने में मसरूफ़ हो गई। शैतान बुलडोज़र की शागिर्द। रुबाब मुँह बना गई और शान को देखा जो सबसे बेखबर खाने के साथ इंसाफ कर रहा था। खड़ूस थोड़ा सा अच्छा भी है वैसे, पर क्या ही था अगर बोल लेता मेरी बीवी से इस तरह बात ना करो, पर नहीं, दिमाग 7वें आसमान पर अटका है इनका। रुबाब ने उसको देखकर सोचा। शान ने उसके घूरने पर एक तीखी नज़र उस पर डाली तो वो खाने की तरफ मुतवज्जा हुई। रुबाब ने शान को लॉन में देखा जो किसी से फ़ोन पर बात करने में मसरूफ़ था। रुबाब के दिमाग में एक शैतानी आई। सुबह मुझ पर पानी फेंका था ना, अब बताती हूँ उनको। रुबाब चलकर किचन में गई और वहाँ से तेल उठाकर सीढ़ियों पर लगा लिया। तेल किचन में रखकर वो सोफे पर बैठ गई और कोई बुक उठा ली। अब तो बस शान के आने का इंतज़ार था। शान मोबाइल में देखता हुआ आ रहा था। रुबाब को तो बस इंतज़ार था वो मंजर देखने का जब शान फिसल कर वहाँ से गिरता। उसी दौरान आयशा मोबाइल पर बात करती दौड़ती हुई सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। रुबाब ने उसको रोकना चाहा। आह मम्मी! इतनी देर में वो सीढ़ियों पर बुरी तरह से गिरी हुई थी। शान ने रुबाब की तरफ देखा जो उल्टा बुक पकड़े आयशा को देख रही थी। शान समझ गया कि यह हरकत उस सरफिरी की ही होगी। वो आयशा की तरफ बढ़ा। रुबाब भी उस तरफ बढ़ी और आयशा की परवाह किए बिना जल्दी से उसका मोबाइल उठाकर उसको दिया। ये लो। शान और आयशा ने उसको
ना समझने वाली नज़रों से देखा। जो आयशा का मोबाइल पकड़े उसको दे रही थी। मैंने सुना है और देखा भी है कि अगर आज के दौर में कोई इंसान गिर जाए तो ज़्यादा परवाह उसकी नहीं बल्कि उसके मोबाइल की जाती है, और इस इंसान को भी उससे ज़्यादा परवाह मोबाइल की ही होती है। रुबाब ने वजाहत दी। शान ने उसकी तरफ गुस्से से देखा। उफ, मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है। ये कहाँ गई छन्नो? मुलाजमा ज़रूर उसने किया होगा ये सब। आयशा का शक मुलाजमा पड़ गया। रुबाब को उसकी ये हालत देखकर हंसी तो बहुत आई, पर वो दबा गई। चलो, ऊपर वाला जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। घरूस ना सही तो ये बुलडोज़र की शागिर्द ही सही। रुबाब ने मन ही मन कहा और कमरे से निकल गई। शान भी उसके पीछे निकला। ये सब तुमने किया है ना? शान ने उसकी बाजू दबोच कर कहा। अल्लाह अल्लाह करे, मैं क्यों करने लगी ऐसा? रुबाब ने हैरान होने की एक्टिंग की, क्योंकि ये काम सिर्फ एक उल्टे दिमाग वाला इंसान ही कर सकता है, और वो इस दुनिया में तुम ही हो। शान ने चिढ़ खाते हुए कहा। आपको बड़ा पता है दुनिया का, जैसे सारी दुनिया देख कर आए हों। रुबाब ने उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। देखो लड़की, मेरे सामने ज़ुबान चलाना बंद करो। मैं बता रहा हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। शान ने उसको वार्न किया। अच्छा? रुबाब अपना बाजू छुड़ाती वहाँ से निकल गई। शान कमरे में आया तो इसी तरह रुबाब को टीवी के सामने बैठा हुआ देखा, और टीवी पर कार्टून ही चल रहे थे। उसकी आमद पर रुबाब ने मुड़कर उसको देखा और टीवी म्यूट पर लगाए उसके साथ सोफे पर बैठ गई। शान, जो कि अपना लैपटॉप खोले कुछ काम कर रहा था, रुबाब को मुसलसल खुद पर नज़र जमाते देखा तो लैपटॉप से नज़रें हटाकर रुबाब को देखा, जो इसी को देखकर मुस्कुरा रही थी। क्या है अब? शान ने उकताहट से कहा। वो पिक्चर्स आपकी हैं? रुबाब ने एक पिक्चर की तरफ इशारा करते हुए उससे पूछा, जिसमें अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़ा था। हाँ, यूनिवर्सिटी के वक्त ही हैं। शान ने कहते ही फिर से अपनी नज़र लैपटॉप पर मर्कूज़ कर ली। यूनिवर्सिटी? आप यूनिवर्सिटी जाते थे? कितने मज़े होते हैं ना वहाँ। अच्छे अच्छे खाने की चीज़ें, ये बड़े बड़े गार्डन, बड़ी क्लासरूम्स, हल्ले गुल्ले। आपने भी बहुत मज़े किए होंगे। रुबाब ने चहकते हुए पूछा। ऐसा कुछ नहीं होता, और मैं मज़े करने नहीं, पढ़ने जाता था। शान उसी तरह संजीदगी से बोला। आप मेरा भी किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा देना, मुझे बहुत शौक़ है आगे पढ़ने का। रुबाब ने उसके सामने अपनी फरमाइश जाहिर की। शान ने हैरान होते हुए उसको घूरा। रुबाब उसके इस तरह घूरने पर सोचने लगी, उसने ऐसा भी कुछ गलत तो नहीं कह दिया। तुम्हें जितना शौक़ है ना पढ़ने का, मैं हमीद अंकल से सुन चुका हूँ, इसलिए मेरे सामने फजूल बातें मत करो अब। शान ने सख्त लहजे में कहा और वापस लैपटॉप के कीबोर्ड पर उंगलियां चलाने लगा। पर उठो यहाँ से और मेरे लिए चाय बना कर आओ जल्दी। बातों में सारा वक्त बर्बाद मत किया करो, ना अपना ना मेरा। शान के इस तरह कहने पर वो पैर पटकती हुई वहाँ से निकले। बड़ा कोई मुल्क संभालना है इनको, जो वक्त बर्बाद होता है बातों से इनका। उफ, स्नो वाइट को प्रिंस तो मिल गया, पर काफ़ी ज़्यादा खरूस प्रिंस मिला है। शान कब से सोने की कोशिश कर रहा था, पर वो थी कि टीवी खोले रात के 2 बजे मॉर्निंग शो रिपीट में देख रही थी। ये टीवी बंद करो, मैं कह रहा हूँ। शान आखिर गुस्से से बोल पड़ा। लाइट्स ऑफ हैं, आप सो जाए ना। रुबाब ने लापरवाही से कहा। मुझे नींद नहीं आ रही इस टीवी की आवाज़ में। शान उठकर बैठ गया। थोड़ा कम कर देती हो ना। रुबाब ने थोड़ा वॉल्यूम कम कर दिया। इस वक्त रात को मॉर्निंग शो कौन देखता है? शान बुरी तरह से उकताया। मैं देखती हूँ ना, रात को रिपीट चलता है। जाहिर है लोग देखते ही होंगे। रुबाब अब टीवी से नज़रें हटाए उसको देखकर बोली। अब शान की बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। वो उठा और टीवी का स्विच निकाल दिया। कमरा अंधेरे में डूब गया। बहुत बुरे हैं आप, रुबाब उकता कर बोली। रुबाब जूस पीती पीती लॉन में टहल रही थी। जब जूस का डब्बा खाली हुआ तो उसके मुड़े हुए कोनों को खोलकर जूस के डब्बे को फुलाकर ज़मीन पर रखा। शान जॉगिंग से लौटा था और अपना प्रोटीन शेक लबों से लगाता हुआ आ रहा था। ना शान को रुबाब की मौजूदगी का इल्म था और ना ही रुबाब को शान की मौजूदगी का। रुबाब ने जूस के डब्बे पर ज़ोर से पाँव मारा। पटाख! डब्बे के फटने की आवाज़ से शान यकदम से बौखलाया, क्योंकि वो हरकत के लिए तैयार नहीं था। तो उसके हाथ से उसका प्रोटीन शेक छूटा और ज़मीन पर जा गिरा। उसने रुबाब की तरफ देखा, जो हंसती हुई कूद कूद कर तालियां बजा रही थी। उसको अपने पटाखे की खुशी थी। शान लंबे डंग फटता उसकी तरफ आया। बड़ी खुशी हो रही है तुम्हें अपने बेकार के किए हुए कारनामे पर? शान गुस्से से चिल्लाया। रुबाब ने उसकी तरफ देखा और नीचे गिरा हुआ प्रोटीन शेक पी। रुबाब दांतों तले जुबान दबा गई। उसको समझ आ गया था कि उसने अनजाने में क्या कर डाला। अभी सबक सिखाता हूँ तुम्हें मैं। बहुत परेशान कर रखा है तुमने। शान की पेशानी की रग तन चुकी थी। वो गुस्से से बोलता हुआ उसकी तरफ भरा। अम्मी बचा ले। रुबाब हवा में हाथ उठाती चिल्लाकर भागने लगी। शान उसके पीछे दौड़ा। आज तुम्हें मैं सबक सिखा कर रहूँगा। शान उसको आज छोड़ने वाला नहीं था। रुबाब का भागते भागते पैर मुड़ा और नीचे जा गिरी। उफ अल्लाह! रुबाब चिल्लाई। शान अब घुटनों के बल उसके सामने बैठा। और करो शैतानियाँ, शान ने गुस्से से उसको देखते हुए कहा। आपकी बद्दुआ लगी है मुझे, रुबाब ने रोते हुए कहा। अच्छा हाथ धो अपना, उठो।
शान ने उठकर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। रुबाब उसकी हमदर्दी पर खुश हुई और खुश होती हुई अपना हाथ उसके हाथ में देकर उठने लगी। वो जैसे ही थोड़ा ऊपर को उठी, शान ने उसका हाथ छोड़ दिया और फिर से ज़मीन पर गिरी, जो उसके हाथ के सहारे ही खड़ी होने लगी थी। रुबाब ने पहले उसकी तरफ गुस्से से देखा और फिर अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए खुद ही हंस पड़ी। तुम्हें वाकई किसी न्यूरोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। शान उसको घूरता हुआ निकल गया। उसको आज वाकई में रुबाब नॉर्मल न लगी। और आपको किसी जोकर की ज़रूरत है जो आपको हंसा सके, खरोसता हो तो। रुबाब दांत पिसती हुई बुड़बुड़ाई थी। रुबाब हमीद साहब के घर आई हुई थी शान के साथ। सबसे मिलकर वो बाहर लॉन की तरफ बढ़ी जहाँ नादिर फुटबॉल से खेल रहा था। उसके किक मारते ही फुटबॉल रुबाब के पैरों में गिरा। एश फट्टू, इधर देख। रुबाब ने नादिर को फुटबॉल बिल्कुल सर पर दे मारा। नादिर का चश्मा गिरते गिरते बजा। तुम्हें इसकी सज़ा मिलकर रहेगी। नादिर ने उंगली उठाकर उसको वार्न किया। अबे चल ना, आया बरा सज़ा दिलवाने। और कौन सज़ा देगा मुझे अब? वो तुम्हारी डाइन माँ। हा बच्चे, अब तो तुम्हारी ख्वाबों में ही। रुबाब उसको चराती हुई तंजिया बोली। आपने उनको डाइन? मैं अभी अम्मी को बताता हूँ। नादिर अपनी बॉल उठाता हुआ बोला। अब तो वो रुबाब फरूक को छू भी नहीं सकती। रुबाब ने नादिर को और चिढ़ाया और उसका चश्मा लेकर पूरे गार्डन में दौड़ने लगी। वो भी उसी के पीछे भागा। रुबाब की अचानक एक मजबूत जिस्म से टक्कर हुई। उसने अपने सर पर हाथ रखा जैसे किसी चट्टान से टकराई हो और ऊपर चेहरा करके रुबाब ने देखा। अरे खड़ूस आप! रुबाब की आंखें हैरत से फैल गईं। शान ने उसको खुद से दूर हटाया। तुम्हें क्या इधर से इधर भागने में मज़ा आता है? शान ने उकताहट भरे लहजे में कहा। नादिर ने आकर रुबाब से अपना चश्मा लेना चाहा। मेरे ग्लासेस। रुबाब ग्लासेस अपने पीछे न छुपाती नादिर को घूरने लगी। अंकल, इनसे कहें कि मुझे अपने ग्लासेस दें। अंकल? रुबाब उसके अंकल कहने पर हंस पड़ी और शान के घूरते ही चुप होगी। ग्लासेस वापस करो बच्चे को, शान ने रुबाब से कहा। बच्चा? अल्लाह की पनाह, ये बच्चा नहीं, आफत है, आफत। रुबाब नादिर को सर पर चपत रसीद करते हुए बोली। नादिर ने अपना सर से हिलाकर मासूम नज़रों से शान की तरफ देखा। ओए खोटे सिक्के, ये मासूम शक्लों से इनको रिझाना बंद करो। शान आपा, इसकी मासूम शक्ल पर मत जाइएगा। ये बहुत ही शातिर है। बुमानी के सामने भी ऐसा ही अपना मासूमियत वाला कार्ड खेलकर डांट पड़वाता है मुझे। रुबाब ने शान को पहले ही आगाह करना चाहा। तुम्हारा मुझे पता है। चलो अब ग्लासेस वापस करो इसके। शान ने उसकी बात का असर लिए बिना कहा। लेकिन मैंने कहा वापस करो। शान उसकी बात काट कर सख्त लहजे में बोला। रुबाब ने ना चाहते हुए भी चश्मा नादिर को दिया। वो फातिहाना मुस्कुराहट लिए वहाँ से निकल गया। अभी तो मौका था इस खोटे सिक्के को तंग करने का और आ गया खड़ूस अपना धौंस जमाने। रुबाब ने उसको घूरते हुए सोचा। ये घूरना बंद करो, मुझे समझ आया। शान उसको घूरने पर गुस्सा करता चला गया। इसको सख्त नापसंद था कि कोई उसको इस तरह घूरे। शान, रुबाब, फारिया और नादिर शान की गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। अजीब ही रिवाज हैं तुम्हारे घर के, बिल्कुल तुम्हारी तरह। शान रुबाब के कान में खुश फंसाया। चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा उकताहट थी। इसमें अजीब क्या है? दामाद पहली दफ़ा बेटी के साथ घर आए तो इसको उसके बहन भाई को आइसक्रीम खिलाने ले जाना पड़ता है। कितना प्यारा रिवाज है। रुबाब मुस्कुराती हुई बोली। तुम्हारा तो दिमाग ही ख़राब है। शान बोलता हुआ ड्राइविंग सीट पर बैठा। अबे रुक खोटे सिक्के, आगे मैं बैठूंगी। नादिर आगे का दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि रुबाब ने उसकी शर्ट का गला पकड़ते उसको रोकना चाहा। आगे मैं बैठूंगा, छोड़ो मुझे छिपकली। नादिर की छोटी सी नाक पर गुस्सा चढ़ा। चल बे आया बड़ा, एक चपेट मार के ना तेरा गाल लाल कर देना है मैंने। चुप करके पीछे बैठ। रुबाब अपना हाथ हवा में लहराती हुई बोली। जल्दी बैठ जाओ तुम दोनों। शान ने शीशा नीचे करके उन दोनों को कहा। आगे मैं बैठूंगा, आप इसको कहें कि पीछे बैठे। नादिर अपनी शर्ट का गला उससे छुड़वाता हुआ शान से मुखातिब हुआ। ये क्यों बैठे आगे? आपकी बीवी मैं हूँ, मैं ही आगे बैठूंगी। रुबाब ने नादिर को पीछे करना चाहा। मैं बैठूंगा। नादिर भी गाड़ी का दरवाज़ा पकड़ के खड़ा हो गया। शान बस खौफ से उन दोनों को देख रहा था। नादिर तुम बैठ जाओ आगे, रुबाब पीछे जाओ। शान ने जल्दी से उनका मसला हल करना चाहा। लेकिन शान, मैं क्यों? रुबाब खफा हुई। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आगे पीछे बैठने से। बैठ जाओ रुबाब, बच्चों के साथ बच्ची मत बना करो। शान ने उसको डांटा तो वो पैर पटकती पीछे की तरफ बैठ गई और ज़ोर से गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा तोड़ मत देना शान अंकल की गाड़ी का। नादिर ने पीछे बैठी मुंडी मोड़े शैतानी करना चाहिए। तू चुप कर जा वरना बजाऊंगी ना कान के नीचे, ऐसी कि 2 दिन तक अपना जबड़ा हिलाने के काबिल नहीं रहेगा। रुबाब ने गुंडों वाला अंदाज अपनाते हुए कहा और जहाँ नादिर मुस्कुराया वहीं शान हैरान रह गया रुबाब को इस लहजे में बात करता देखकर। ये किस लहजे में बात कर रही हो तुम? शान ने हैरत से कहा। शान भाई, ये तो ऐसे ही बात करती हैं, आपको आज पता लगा? फारिया ने जल्दी पर तेल डाला। बुलडोज़र अपनी ज़ुबान बंद रखें। आई बड़ी। रुबाब बुरी तरह से दब चुकी थी। हद दर्जा बदतमीज़ हो तुम, बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं। फारिया ने उसको शर्मिंदा करना चाहा। हाँ ओह,
बड़े चाहे कितनी भी बदतमीजी से पेश आएं। छोटे चुप करके सुने। वाह भाई, ये अच्छा है। और फारिया बेजी, अगर हम छोटों का फ़र्ज़ है बड़ों की इज़्ज़त करना, तो बड़ों को भी चाहिए कि हमें प्यार दें। रुबाब की बात सुनते ही फारिया खामोश होकर खिड़की से बाहर देखने लगी। रुबाब, आइंदा मैं तुम्हें गलत लहजे में बात करते हुआ ना सुनो। मुझे नहीं पसंद ऐसा लहजा। शान ने उसका बावर करवाया। लेकिन शान, आप हमेशा मुझे। अब एक और लफ्ज़ नहीं, मैंने कह दिया, तुमने सुन लिया। शान उसकी बात काट कर बोला। ओफ, अब स्नो वाइट 2 विलन्स में फंस चुकी है और प्रिंस पर भी विलन्स ने अपना जादू चला लिया है, जिसकी वजह से वो उनके काबू में आ गए हैं। उनकी झांसे में आकर स्नो वाइट से लड़ रहे हैं। स्नो वाइट को जल्दी से इस जादू का तोड़ निकालना होगा। रुबाब ने शान, नादिर और फारिया को देखते हुए सोचा। मेरा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, मेरा मैंगो। आइसक्रीम पार्लर आते ही फारिया और नादिर ने गाड़ी में बैठे फरमाइश की। रुबाब को वो दोनों ही फ्लेवर्स अच्छे लगते थे, पर इन दोनों के कह देने से वो उनसे ट्विंग नहीं करना चाहती थी। तुम्हारा कौन सा फ्लेवर? शान ने रुबाब से पूछा तो वो अपनी सोचों में गुम थी। जो आप अपने लिए लें वो ही मेरे लिए भी लें। मैं आइसक्रीम नहीं खाता, तुम अपना बताओ, शान ने संजीदगी से कहा। कोई भी ले आए बस, रुबाब ने मुंह बनाकर कहा और खिड़की खोले बाहर की तरफ देखने लगी। नादिर और शान गाड़ी से उतरकर आइसक्रीम लेने चले गए। कैसा बंदा है, आइसक्रीम ही नहीं खाता। और स्नो वाइट की तो किस्मत ही खराब है, पहली बार अपने प्रिंस के साथ आउटिंग पे आई, वो भी 2 विलेंस के साथ। रुबाब ने दूर खड़े शान को देखते हुए सोचा। रुबाब अब इंतज़ार करते करते बोर हो रही थी। उसको एक बूढ़ा शख्स आता दिखाई दिया जो उनकी गाड़ी के पीछे की तरफ था। उसके मन में एक शैतानी उमड़ आई। वह सीधी होकर बैठ गई और उस बूढ़े शख्स का इंतज़ार करने लगी कि कब वो उनकी कार के दरवाजे के सामने से क्रॉस होगा। वो जैसे ही वो शख्स उसको खिड़की पर दिखा, हाओ! रुबाब ने ज़ोर से चीख कर खिड़की का शीशा जल्दी से चढ़ा दिया। वो बूढ़ा शख्स बुरी तरह से भौंचका रह गया और आंखें फाड़े खिड़की की तरफ देख रहा था जो बंद हो चुकी थी। पागल तो नहीं हो गई? फारिया ने उसकी ये शैतानी देख ली थी। हाँ, हो गई हूँ तो, रुबाब ने कंधे उचका कर कहा और सब खिड़कियाँ देखने लगी कि सब बंद हैं कि नहीं। शादी के बाद पढ़ लगे हैं तुम्हें? फारिया अपने मोबाइल पे टाइपिंग करती हुई बोली। आप भी कर लें, क्या पता आपको भी पढ़ लग जाए, रुबाब ने मुस्कुराते हुए कहा। इतनी देर में शान और नादिर गाड़ी में आकर बैठे और उनको आइसक्रीम के कप थमा दिए। रुबाब को वो बुरा शख्स गाड़ी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। शान, ड्राइव करे ना, रुके क्यों हैं? रुबाब को जल्दी सी निकलने की वहाँ से। तुम लोग खा लो आराम से, शान ने मोबाइल चलाते हुए कहा। नहीं शान, ऐसे मज़ा नहीं है ना, रुबाब ने ज़िद की, पर बहुत देर हो चुकी थी। वो शख्स आकर शान की साइड वाली खिड़की बजाने लगा। अब तो स्नो वाइट गई, रुबाब ने अपने नाखून चबाते हुए सोचा। शान ने खिड़की नीचे की और उस शख्स की तरफ देखा। भाई साहब, अपनी ख़वातीन को समझाएं, ऐसे किसी बुज़ुर्ग को डराना मुनासिब नहीं। उस आदमी की शिकायत लगाते ही शान रुबाब की तरफ मुड़ा। रुबाब, शान घबराया। नादिर और फारिया ने भी उसकी तरफ देखा। रुबाब का रंग उड़ गया। आइंदा से मेरी तौबा कि कहीं तुम्हें बाहर ले जाऊं, शान ने गाड़ी ड्राइव करते हुए कहा। अब गाड़ी में सिर्फ वो दोनों थे और अपने घर के लिए निकले थे। रुबाब कब से खामोश होकर मुंह फुलाए उसकी डांट सुन रही थी। तुम्हें पता भी है मुझे कितनी शर्मिंदगी हुई है उस अंकल के सामने। तुम्हारी वजह से मैंने उनको सॉरी कहा। शान का गुस्सा ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अच्छा, बस भी, सॉरी कहने से आप छोटे तो नहीं होगे। रुबाब से अब बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। शान मलिक हूँ मैंने आज तक किसी को सॉरी नहीं कहा। मैं ऐसा हूँ कि लोगों से सॉरी करवा दूँ, और तुम्हारी वजह से आज किस्मत ने मुझे ये दिन भी दिखा दिया कि मैंने शान मलिक ने पहली बार किसी को सॉरी किया। शान की सुई अभी तक सॉरी पर अटकी हुई थी। हाँ हाँ, पता लग गया मुझे, आप शान मलिक हैं। शान मलिक आप किसी को सॉरी नहीं करते, बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, रुबाब ने शान मलिक पर जोर देते हुए कहा। वो कब से उसका शान नामा सुनकर तंग आ चुकी थी। तुम मेरे साथ आइंदा बाहर नहीं आओगी, अंडरस्टैंड? शान ने उसको गुस्से से देखकर कहा। रुबाब मुंह बनाए सीधा रोड पर नजरें टिकाए बैठ गई। तो मेरी प्यारी ऑडियंस, देखा आपने कि स्नो वाइट पर कितना जुल्म होता है। पहले वो डाइन, खोटा सिक्का और बुलडोज़र, और अब स्नो वाइट का प्रिंस भी। बस मेरे लिए दुआ करें कि स्नो वाइट सब्र करना सीख ले, रुबाब ने मन ही मन में सोचा और अपने दिमाग में अपनी एनिमेटेड मूवी का एक और सीन ऐड कर लिया। रात में शान बेड पे लेटा कोई किताब पढ़ रहा था। रुबाब भी बेड पे लेटी टीवी देख रही थी। वो टीवी देखते देखे बोर हुई तो शान की तरफ देखा जो पूरी संजीदगी से किताब पढ़ने में मसरूफ़ था। रुबाब ने उसके कंधे पर सर रख दिया। क्या पढ़ रहे हैं आप? दिख नहीं रहा, बुक पढ़ रहा हूँ। शान की पोजीशन में कोई फ़र्क ना आया। कौन सी बुक? रुबाब उसी तरह उसके कंधे पर सर रखे उससे बात कर रही थी। है एक बिज़नेस के हवाले से। शान के जवाब देने पर वो समझ गई कि वो उससे बात नहीं करने वाला और इसी तरह किताब पढ़ने के मूड में है, तो वो इसी तरह उसके कंधे पर सर रखे टीवी में रिपीट मॉर्निंग शो देखने लगी। शान को भी अब आदत पड़ गई थी रात भर जागने की और इसी तरह टीवी के शोर में सोने की। रुबाब को वहीं उसके कंधे पर टीवी देखते देखते नींद आ गई। टीवी बंद कर लो रुबाब, शान ने बुक रखते हुए कहा और उसकी तरफ नहीं देखा।
शान को जब जवाब न मिला तो उसने रुबाब का चेहरा देखा। वो सो चुकी थी। उसने आहिस्ता से उसका सर पकड़कर अपने कंधे से हटाया, तकिए पर रखा कि उसकी नींद न खुल जाए। वो उसकी केयर करने लगा था। उसने रुबाब का चेहरा देखा। मासूमियत भरा चेहरा शान के दिल में उतर गया। उसने उसके चेहरे पर पड़े बाल हटाए और मुस्कुराया। रुबाब ने करवट ली तो शान होश में आया और टीवी बंद करता खुद भी सोने लगा। शान शाम में ऑफिस से लौटा तो कमरे में आया जहाँ रुबाब उदास सी बैठी थी। शान ने उसको पहली बार इस तरह उदास देखा था। शान उसको इग्नोर करता अलमारी से कपड़े उठाता वॉशरूम में चला गया। चेंज करके आया तो रुबाब इसी तरह बैठी थी। तुम्हें आज क्या हुआ है? शान अपने बालों में ब्रश चलाता हुआ बोला। मुझे मेरी सहेलियों की बहुत याद आ रही है। रुबाब उसके ऑफिस वाले बैग को अपनी जगह पर रखती हुई बोली। तो फ़ोन कर लो इनको। शान अपना लैपटॉप खोलता हुआ बोला। फ़ोन नहीं है मेरे पास। अच्छा। शान अब लैपटॉप में मसरूफ़ हो गया। आपसे कुछ कहूँ? रुबाब ने शान को मुखातिब किया। कहो। शान लैपटॉप पे उंगलियां चलाता हुआ बोला। आप मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा देना प्लीज़। मेरी सहेलियां पढ़ रही हैं आगे, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। मुमानी ने तो शादी ही करवा दी इंटर के बाद। रुबाब मुँह बसूरती हुई बोली। तुम्हें जितना पढ़ने का शौक़ है ना, मैं जानता हूँ। तुम्हें बस टीवी देखना, जूसों के डब्बों से पटाखे बजाना और बच्चों पर रो भी झाड़ना आता है। शान चेहरे पर उकताहट लिए बोला। इतना खरूस होना सेहत के लिए अच्छा नहीं। रुबाब झुंझलाई। क्या कहा तुमने मुझे? खरूस? आगे से इस नाम से पुकारा तो देख लेना। अब शान ने लैपटॉप से नजरें हटाए उसको देखकर गुस्से से कहा। वो मुंह फुलाए बैठ गई और उसको तकती रही। अब तो स्नो वाइट का प्रिंस डाइन के जादू से पता नहीं कब निकले। शान बेटा, आप लोग हनीमून पर क्यों नहीं चले जाते कुछ दिन? सारा दिन बस ऑफिस के कामों में उलझे हुए हो। सब डिनर कर रहे थे तो नरीन बेगम ने शान से कहा। अम्मी अभी तो मुमकिन नहीं, बहुत काम पड़े हैं मुझे। शान ने बहाना बनाया। रुबाब का बहुत मन था वो घूमने जाए, पर शान की बात सुनकर उसका मुंह लटक गया। अरे काम होता रहेगा, तुम लोग जाओ। रुबाब भी सारा दिन बैठे बैठे बोर हो जाती है। नूरीन बेगम ने कहा। ठीक है, सोचता हूँ। शान के कहते ही ताहिरा ने 2 टिकट्स उसके सामने लहराए। सोचने का टाइम गुजर चुका। मैंने मरी की टिकट्स करवा ली हैं, कल रात ही निकलना है बस आप लोग। ताहिरा ने उसको मजबूर कर दिया जाने पर। शान हैरान परेशान था तो वहीं रुबाब की आंखें चमक उठी। रात में शान गार्डन में टहल रहा था जब रुबाब उसको कॉफ़ी देने आई और उसको देखकर वहीं रुक गई। शान वाइट टी शर्ट और पजामे में मलबूस अपनी सोचों में गुम टहल रहा था। बहुत हैंडसम है ये तो, या फिर मुझे लग रहा है, रुबाब ने उसको देखते हुए सोचा। शान ने किसी की नज़रें खुद पर महसूस की तो रुबाब की तरफ देखा। वो जल्दी से दरवाजे के पीछे छुप गई, पर शान ने उसको देख लिया था। शान नफी में सर हिलाता फिर से अपने काम में मसरूफ़ हो गया और रुबाब ने मुस्कुराते हुए अपने सर पर हाथ मारा। पागल हो स्नो वाइट, ऐसे पागलों की तरह मत देखो प्रिंस को। अगले दिन शाम में रुबाब, ताहिरा और आयशा लूडो खेल रही थी। आयशा, तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारे 4 नहीं 3 आए थे। रुबाब की गोटी मर रही थी। आयशा की गोटी से तो रुबाब झूठ बोलने लगी। वो हरगिज़ नहीं चाहती थी कि उसकी आखिरी गोटी मरे, जो कि 5-6 दफ़ा मर चुकी थी। ताहिरा बाजी देखिए इसको, मुंह पर झूठ बोल रही है। मेरे 4 आए हैं और इसको अपनी गोटी उठानी पड़ेगी। आयशा भी गुस्से से बोली। रुबाब, इसके 4 ही आए थे। ताहिरा के कहने पर रुबाब नफ़ी में सर हिलाने लगी और अपनी गोटी पकड़ के बैठ गई। नहीं नहीं, मैंने तो नहीं देखे ना। शान जब आया रुबाब को इस तरह लूडो खेलते हुए देखा तो उसको गुस्सा आ गया। उनके जाने में बस 2 घंटे बाकी थे और वो इस तरह बड़े मज़े से लूडो खेल रही थी। पैकिंग की है तुमने जो यहाँ लूडो खेल रही हो? शान उसके सर पर खड़ा होकर संजीदगी से बोला। पैकिंग? उफ, मैं तो भूल ही गई, बस आखिरी गोटी है, पास करके आती हूँ। रुबाब के लापरवाही से कहने पर शान ने उसको बाजू से पकड़ कर उठाया। उठो और जल्दी से जाकर पैकिंग करो। रुबाब, अगर गई तो मैं जीत गई। आयशा खुश होती बोली। ऐसे कैसे जीत गई? रुबाब ने सारा लूडो उल्टा कर दिया। आयशा का मुंह खुला का खुला रह गया। रुबाब, शान ने उसको घूरा। जाती हूँ ना, गुस्सा ना करें। रुबाब शान का गाल थपथपाती हुई वहाँ से निकल गई। शान उसकी इस हरकत पर गुस्सा जब्त किए एक ठंडी आह भर कर रह गया। दोनों बड़ी के लिए निकल आए। रुबाब बहुत खुश थी और हर नज़ारा देखकर शान से कुछ न कुछ कहती रही। थोड़ी देर होटल में रुकने के बाद वो दोनों घूमने फिरने निकले थे। रुबाब बर्फ़ में खड़े बर्फ़ से खेल रही थी और वहीं शान एक पत्थर पर बैठा हुआ अपने हाथ रगड़ रहा था। उसको सर्दी लग रही थी। रुबाब ने उसको यूँ बैठे देखा। यहाँ आकर भी खड़ूस ही रहेंगे ये तो। रुबाब ने उसको देखकर बुड़बुड़ाया और बर्फ़ का गोला बनाकर उसकी तरफ उछाला। शान यकदम उठ बैठा और एक उससे भरी नज़र उस पर डाली। शान ने भी गोला बनाकर उसको दे मारा और फिर रुबाब ने। ये सिलसिला चलता रहा। वो दोनों थक कर अब होटल की तरफ जा रहे थे। आसमान ने अब काली चादर लपेट ली थी। वो होटल पर रिसेप्शन पे खड़ा कीज़ ले रहा था तो उसको एक लड़की नजर आई। ब्राउन घुटनों तक आता कोट, इस पर जीन्स, ब्राउन खुले बाल। वो चाबियां घुमाए अपनी धुन में चल रही थी। अनुशे, शान ने उसको मुखातिब किया। वो लड़की मुड़ी और शान की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैली। वो अब शान की तरफ बढ़ने लगी। रुबाब खड़ी हुई ये सब देख रही थी।
वो शान को गुस्से से घूरने लगी। उसने उसको पहली बार मुस्कुराते हुए देखा था, वो भी किसी और लड़की के साथ। तुम यहाँ? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज शान, अनुषा ने उससे हाथ मिलाकर कहा। मैं बस हनीमून पे आया हुआ था यहाँ, शान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओहो, मिस्टर शान को आखिर कोई पसंद आ ही गया, वेरी नाइस। वैसे कौन है वो? अनुषा एक्साइटेड होकर पूछने लगी। ये है रुबाब, मेरी वाइफ। और रुबाब, इसे मिलो, ये मेरी यूनिवर्सिटी की फ्रेंड अनुषा। अनुषा ने मुस्कुराकर रुबाब की तरफ हाथ बढ़ाया, जिसको रुबाब ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए थामा। हाथ मिलाने के बाद वो फिर से शान से बातें करने लगी। दोनों को इस तरह मुस्कुराता हुआ देखकर रुबाब का खून खोलने लगा। वो दांत पीसती उन्हीं को देखी जा रही थी। लो भाई, स्नो वाइट की लाइफ में एक और विलन ने एंट्री मार दी है, और इसको डाइन ने ही भेजा है प्रिंस को तो काबू करने के लिए। रुबाब अपनी कहानी में विलन को ऐड करना ना भूली थी। अनुषा और शान एक साथ बातें करते चल रहे थे। रुबाब उनके पीछे चल रही थी। लगता है काफ़ी अच्छी दोस्ती है आपकी इससे। रुबाब कमरे में आते ही शुरू होगी। हाँ, काफ़ी दिनों बाद मिले हैं हम, यूनिवर्सिटी में मेरी दोस्त रह चुकी है, शान मुस्कुराता हुआ बोला। मुझसे तो मुस्कुराते हुए बात नहीं की आपने कभी, और उससे तो हंस हंस के बात कर रहे थे। रुबाब उसके चेहरे को देखते हुए बोली, जहाँ से मुस्कुराहट गायब नहीं हो रही थी। शान ने एक चिढ़ खाती नज़र उस पर डाली। फजूल की ये सोचती रहना तुम। अब चेहरे पे सख्ती आ चुकी थी, और वो ये कहकर वॉशरूम चला गया। रुबाब ने उसका स्मार्टफोन देखा और उसको उठाए उसको अनलॉक किया। शुक्र है पासवर्ड नहीं लगा हुआ इस पर, रुबाब खुद से बोली, और गेम खेलना शुरू हो गई। वो अक्सर हमीद का मोबाइल लेकर इसमें भी गेम खेला करती थी। वो मसरूफ़ थी गेम खेलने में जब शान बालों में टावल चलाता हुआ अंदर दाखिल हुआ। वो उसके हाथों में अपना फ़ोन देखकर शान का तो मानो बीपी हाई हो गया। उसने चलकर रुबाब के हाथों से अपना फ़ोन झपटा। रुबाब अपनी छोटी आंखें फाड़े चेहरा ऊपर किए उसी को देखने लगी। अब यही करना बाकी रह गया था कि तुम मेरा फ़ोन चेक करो, शान तकरीबन चिल्लाया। पर मैं तो चुप रहो, एक लफ्ज़ मत बोलना, तुमसे नरमी से पेश आता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस हद तक पहुँच जाओ। शान उसकी बात काट कर बोला। अब तुम मेरी जासूसी करना शुरू करोगी? शान उसकी आंखों में आंखें गाड़ता हुआ बोला। रुबाब ने नफ़ी में सर हिलाया, और जैसे ही शान ने अपनी नज़रें मोबाइल की तरफ की तो उसको गेम चलती हुई नजर आई। शान को अपनी बेवकूफ़ी पर नदामत हुई। सॉरी, वो सॉरी कहकर बाहर निकल गया। सॉरी? सॉरी कहने से क्या होता है, देखते ही नहीं सही से, बस अंधाधुंध गुस्सा करना शुरू, और आखिर में सॉरी। और सॉरी एक्सेप्ट होने का वेट भी नहीं। खड़ूस, रुबाब रोती शक्ल बनाए बुड़बड़ाई। वो किसी शॉपिंग मॉल में आए थे और उनके साथ अनुषा भी आई हुई थी। दो लड़कियों के साथ हनीमून चल रहा है इनका तो। रुबाब ज्वेलरी के पास खड़ी हुई इन दोनों को देख रही थी। अनुषा अलग अलग ड्रेस अपने ऊपर रखती शान से मशवरा मांग रही थी। रुबाब भी उनकी तरफ बढ़ी और एक ड्रेस उठाकर शान को दिखाया। ये कैसा लग रहा है मुझ पर? रुबाब ने मुस्कुराते हुए शान से पूछा। इतना अच्छा नहीं, शान के कहते ही रुबाब ने मुंह बनाए ड्रेस को इधर ही रख दिया। आपके अनुष ने एक ड्रेस उसको दिखाई। शान, ये देखो। चॉइस काफ़ी अच्छी है तुम्हारी। शान इम्प्रेस हुआ। रुबाब ने अनुषा के हाथ में पकड़ी इस पैंट शर्ट को देखा और ख़ुद भी वही खरीद लाई अपने लिए। उफ़ अल्लाह, कितने तंग कपड़े हैं ये। रुबाब घर आई तो पैंट शर्ट पहने खड़ी थी और ख़ुद को आईने में देखते हुए बोली, शर्ट तो बच्चों के साइज़ वाली लाई हूँ मैं शायद। रुबाब अपनी शर्ट को नीचे खींचती हुई बोली। उसने अपने काले घने बालों का जूड़ा बनाया हुआ था, इसमें से कुछ लटे चेहरे पर झूल रही थी। शान कमरे में दाखिल हुआ और रुबाब को इस तरह की ड्रेसिंग में देखकर उसकी सटी बटी उड़ गई। रुबाब ने उसको देखा तो मुस्कुराकर अपने बाजू छुपाने की कोशिश की, जो कि हाफ स्लीव थे। रुबाब को ऐसे कपड़ों की आदत नहीं थी। अच्छी लग रही हूँ? रुबाब ने उसकी तरफ देखकर पूछा। ये क्या अजीब सी बनी हुई हो? शान ने चेहरे के अजीब जाविये बनाकर कहा। अजीब? अच्छा, मैं करूँ तो अजीब, और जब वो जादूगरनी अनुषा करे तो इम्प्रेस होते हैं आप उससे। रुबाब आंखें सुकेड़ती हुई बोली, तुम वाकई दिमाग से फारिग हो, दिमाग थोड़ा यूज़ भी कर लिया करो। कहाँ ले जाओगी ये नया दिमाग? एक काम करो, बेच दो इसको। बिल्कुल यूज़ नहीं किया गया, मार्केट में पैसे ज़्यादा मिल जाएंगे। शान उकता कर बोला। अच्छा, हंसना था? रुबाब भी चिढ़ गई। अब क्या मिला तुम्हें ये सब करके? शान बेड पर बैठता हुआ अपना मोबाइल चलाता हुआ बोला। मुझे लगा आपको अच्छा लगेगा, जैसे उस अनुषा की ड्रेसिंग अच्छी लगती है आपको। आप उससे बात भी मुस्कुरा कर करते हैं, शायद इसी तरह आप मुझसे मुस्कुरा कर बात करें। रुबाब ने उसको असल वजह बताई। शान पहले तो उसकी बात सुनकर उसको हैरानगी से देखने लगा, फिर एक जानदार कहकहा लगाया। रुबाब ने उसको पहली दफ़ा इस तरह हंसते देखा था और हैरान हुई कि इतने सीरियस माहौल में ऐसा क्या हो गया कि उसको हंसी आ रही है। देखो रुबाब, शान ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, तुम जैसी हो वैसी ही रहा करो। हर किसी का अपना अंदाज़ होता है, अपनी पर्सनैलिटी होती है। किसी और की नकल करने की कोशिश करोगी तो उसकी पर्सनैलिटी हासिल करने से तो रह जाओगी, बल्कि अपनी पर्सनैलिटी भी खो दोगी। शान ने उसको तहम्मुल से समझाया। मतलब मैं जैसी हूँ वैसे ही आपको पसंद हूँ?
रबाब के सवाल पर शान मुस्कुराया। कपड़े चेंज कर लो, मैं आता हूँ एक ज़रूरी कॉल करके, शाम ने मुस्कुराते हुए कहा और कमरे से बाहर चला गया। तो स्नो वाइट ने एक और सबक सीखा कि जैसी हो वैसी ही रहो। जादूगरनी और डाइम के जादू का असर ख़त्म होता महसूस हो रहा है। खरूस नर्म पड़ने लगा है। रुबाब सोचती हुई ड्रेस चेंज करने चली गई। शान कमरे में आया तो उसको रुबाब कहीं नहीं दिखी। वो लैपटॉप खोलकर बैठ गया, अपने ऑफिस का काम करने लगा, इस ख्याल से कि रुबाब वॉशरूम में होगी ड्रेस चेंज करने। तकरीबन आधा घंटा उसको हुआ काम करते करते। शान को अचानक रुबाब का ख्याल आया, जो कि अभी तक कहीं जाहिर नहीं हुई थी। होटल के कमरे से तो वो बाहर निकलती नहीं थी। शान परेशान सा हो गया, पता नहीं कहाँ चली गई है। शान ने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला तो वो लॉक नहीं था, वॉशरूम खाली था। शान को अब एक अजीब सी परेशानी ने आन घेरा। पता नहीं कहाँ चली गई होगी, कहीं नाराज़ ही तो नहीं होगी मेरी बातों से। शान ने खुद से अंदाज़ा लगाया और कमरे से बाहर निकला। पूरे होटल में वो उसी को ढूंढ रहा था। जहाँ परेशानी थी वहीं उसको गुस्सा भी आने लगा कि वो ऐसे कैसे बिना बताए कहीं चली गई। शान, क्या हुआ, ऐसे परेशान से क्यों हो? अनुष्या बाहर आई तो उसको यूँ देखते हुए पूछा। रुबाब पता नहीं कहाँ गई हुई है, कहीं मिल नहीं रही। शान ने परेशानी से इधर उधर नज़रें घुमाते कहा। कहीं बाहर घूमने गई होगी, शॉपिंग वगैरह पे। नहीं, वो अकेली बाहर नहीं जाती यार। शान अब उकता चुका था। अच्छा तुम टेंशन न लो, इसकी कोई पिक है तुम्हारे पास? अनुषा ने उससे पूछा। पिक्चर? हाँ है पिक, रुको। शान ने सोचा और मोबाइल में एक पिक्चर तलाश करने लगा जो एक सीक्रेट फोल्डर में रखी हुई थी। शान ने उसको पिक्चर दिखाई रुबाब को। रुबाब कॉलेज यूनिफॉर्म में थी और फिर अनुषा और शान एक एक को पिक्चर दिखाकर उनसे पूछने लगे। एक अधेड़ उम्र औरत के पास गए वो। आपने इनको कहीं देखा है? शान ने परेशानी से पूछा। हाँ। उस औरत की हाथ सुनते ही अनुषा और शान ने हैरत से एक दूसरे को देखा। आओ तुम। उस खातून ने उनको अपने पीछे चलने का कहा और एक कमरे में ले गई। कमरा खुलते ही जो मंजर शान ने देखा, उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और अनुषा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। लो, मिल गई तुम्हारी रुबाब। वैसे शान, मैंने पहली मर्तबा इस तरह तुम्हें किसी के लिए इतना परेशान देखा है, अनुषा ने मुस्कुराते हुए कहा। शान ने उसकी बात सुनकर पहले उसको देखा और फिर रुबाब को। रुबाब 3 बच्चों के साथ बड़े मज़े से बैठी हुई लूडो खेल रही थी। शान का दिल चाहा वो एक हथौड़ा उठाकर पहले अपना सर और फिर इस सरफिरी के सर पे दे मारे। ये चुप कर, बजा दूंगी एक कान के नीचे। एक आ गया मेरा, मैं जीत गई। रुबाब ने फिर से अपना गुंडों वाला स्टाइल अपनाया। बच्चों पर रोब झाड़ना कब बंद करोगी तुम? और चलो यहाँ से। शान यकदम से आया और उसका हाथ पकड़ा। रुबाब उठ बैठी। शान, नहीं, मैं जीतने वाली हूँ। रुबाब ने जिद करना चाहिए। चलो तुम, गेम तो मैं तुम्हें खिलाता हूँ आज, शान ने उसका हाथ खींचते हुए कहा। रुबाब चुप करके उसके साथ चली गई। ऐसे बिना बताए कहाँ गई थी तुम? मैं कितना परेशान था तुम्हें अंदाज़ा भी है? शान कमरे में आते ही उस पर बरस पड़ा। आप बाहर चले गए थे उस जादूगरनी के पास, मैं बोर हो रही थी तो चली गई। रुबाब अपना गुस्सा दबाते हुए बोली। जादूगरनी? ज़रूरी है सबके अजीम से ही नाम रखा करो तुम? हर दूसरे तीसरे का एक अजीम सा नाम रख लेती हो। शान उसकी सादत से तंग आकर बोला। सॉरी ना, रुबाब ने धीरे से कहा। आइंदा से तुम बिना मुझसे पूछे कहीं गई ना तो देखना हो कितनी और शरारतें देखो अपनी चूज़ी। शान भी उस पर एक नाम रखता हुआ अपना लैपटॉप खोले काम करने लगा। तो स्नो वाइट को अब चूज़ी बोला जा रहा है, वो भी उसका प्रिंस बोल रहा है जादूगरनी के जादू में आकर। और स्नो वाइट तो आज जीती हुई गेम भी हार गई और मेरा प्रिंस हनीमून पर आकर भी अपनी गर्लफ्रेंड यानी लैपटॉप के साथ बिजी है। स्नो वाइट उदास है। रुबाब बेड पर गिरने के अंदाज में लेट गई और अपनी कहानी में खो गई। शान ने एक नज़र उसको देखा और मुस्कुराता हुआ सर झटक कर अपना काम करने लगा। रात में शान और रुबाब डिनर के लिए आए थे। अब डिनर करने के बाद लॉन में बैठे थे। हवा से रुबाब के खुले हुए बाल उड़ रहे थे जो सामने बैठे शान का चेहरा छू रहे थे। अपने बाल एक जगह समेट नहीं सकती तुम? शान उसके बालों से तंग आकर बोला। रुबाब ने मुस्कुराते हुए अपने सारे बाल दाएं कंधे पर रख लिए। वो दोनों ही आसमान की तरफ देख रहे थे। माहौल काफ़ी पुरसुकून था, बस खामोशी का ही राज था। अच्छा ये बताए ना, आपको कभी किसी से प्यार हुआ है? रुबाब ने खामोशी तोड़ी। मुझसे कह रही हो? शान उसके सवाल पर हैरान हुआ। नहीं, यहाँ जो ऊपर मेरे सर पर मच्छर घूम रहे हैं ना, उनसे। जाहिर है आपसे ही पूछ रही हूँ, रुबाब ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, कभी मोहब्बत नहीं हुई मुझे, कभी ऐसी कोई मिली ही नहीं। शान ने बात पूरी करके रुबाब की तरफ देखा जो मुस्कुराकर उसी को देख रही थी। हाय, इतने शरीफ लगते तो नहीं आप वैसे। जिसको मोहब्बत ना हुई हो ज़रूरी नहीं कि वो शरीफ ही हो। खैर तुम बताओ, तुम्हें कभी मोहब्बत? शान ने काले आसमान को देखते हुए कहा। हाँ हाँ, मुझे मोहब्बत? सारा स्कूल कॉलेज तो मैंने लड़कियों के साथ गुजारा है, उनसे होती मोहब्बत? या फिर मेरे कोजे निखट्टू शोहे कज़न्स के साथ? रुबाब ने बात को मजाक का रंग दिया। और मुझसे? शान ने संजीदगी से उसको देखते हुए पूछा। आपसे? आप तो मेरे शोहर हैं। अब तो मोहब्बत से बात आगे बढ़ चुकी है। रुबाब ने भी उसकी तरफ देखते हुए कहा। तो वो सर इस बात में हिला दे मुस्कुरा दिया।
चलो चलते हैं, बहुत रात हो चुकी है। शान उठते हुए बोला। रुबाब भी उठकर उसका हाथ पकड़ते उसके साथ चलने लगी। रुबाब सुबह उठी तो बेड पर शान को ना पाकर वो इधर उधर देखने लगी। एक ख्याल के तहत वो अनूशे के कमरे की तरफ बढ़ी। शान और अनूशे दोनों कमरे के बाहर खड़े थे। शान की पुश्त रुबाब की तरफ थी और अनूशे का चेहरा उसको साफ दिख रहा था। अनूशे शान का हाथ थामे खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। रुबाब का ये मंजर देखते ही सर घूम गया। वो तेज कदमों से बढ़ती हुई उन दोनों के पास गई और अनूशे का हाथ खींचकर शान के हाथ से दूर हटाया। शान उसको हैरत से देख रहा था और अनूशे भी। तुम्हें शर्म नहीं आती? किसी के शोहर का हाथ पकड़ते हुए बेशर्म कहेगी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तो तुम जैसी लड़कियों पे लानत है। रुबाब अनूशे पर बरस पड़ी थी। रुबाब तुम गलत, आप तो बस ही करें। रुबाब ने शान की बात काटी। हाउ स्टूपिड शी इज। शान तुम्हें भी यही मिली थी? अनूशे ने ताज्जुब खाती नजरों से उसको देखकर कहा। क्या बकवास की तुमने अभी? स्टूपिड हूँ मैं? रुक, अभी बताती हूँ कितनी स्टूपिड हूँ मैं। रुबाब ये कहते ही उसकी तरफ बढ़ी और उसके बाल नोच डाले। अनूशी अपने बाल छुड़वाने की कोशिश करने लगी। शान भी रुबाब को दूर हटाने लगा, पर उस पर तो जैसे कोई भूत सवार हो चुका था। जानती नहीं हो रुबाब को तुम? ऐसा सबक सिखाऊंगी कि शान के पास आने से पहले 10 मरतबा सोचूंगी। रुबाब ने उसको दरबार से लगा लिया और उसकी गर्दन पर अपना बाजू रख लिया। होटल के कुछ लोग वहां जमा हो गए थे। शान ने शर्मिंदगी से अपना चेहरे पर हाथ फेरा और इन दिनों को देखा जो जंगली बिल्लियों की तरह लड़ रही थी। तुम जैसी जाहिल औरत और कर भी क्या सकती है, छोटे शहर की बददिमाग लड़की। अनूशे की बात सुनते ही रुबाब ने उस पर हाथ उठाना चाहा। शान ने उसका हाथ रोका और बाजू से पकड़कर कमरे में ले जाने लगा। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, जादूगरनी कहेंगी। रुबाब पीछे मुंह करके अभी भी उसको सुनाई जा रही थी। स्टूपिड गर्ल, जाहिल। अनूशे लोगों की भीड़ को देखती हुई कमरे में चली गई। शान ने कमरे में आकर दरवाज़ा लॉक किया। शान गुस्से से लाल पड़ रहा था क्योंकि आज जो रुबाब ने किया वो उसकी बर्दाश्त से बाहर था। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, इतना तमाशा करने की क्या ज़रूरत थी वहाँ? एक बार मेरी बात तो सुन लेती। शान ने उसका बाजू एक झटके से छोड़कर गुस्से में कहा। क्यों ना करती तमाशा? आपको भी शर्म आनी चाहिए। बीवी के होते हुए भी आप उसका हाथ पकड़े रोमांस लड़ा रहे थे। मुझे तो पहले से ही शक था आप दोनों पर, अब यकीन हो गया। चटाख। रुबाब रवानगी से बोल रही थी, तभी शान की बर्दाश्त की हद हो चुकी थी तो उसने रुबाब के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगाया। रुबाब बेड पर जाकर गिरी और बेयकीनी से शान को देखे जा रही थी। जब पूरी बात का पता ना हो तो तुम्हें इसके बारे में अपनी राय देने की कोई ज़रूरत भी नहीं। शान जी कहता हुआ वहाँ से चला गया। रुबाब वहीं रोती रही। वो दोनों घर के लिए निकल रहे थे। दोनों ही प्लेन में अजनबियों की तरह बैठे थे। आपका फ़ोन मिल सकता है, मुझे एक कॉल करनी है। शान ने रुबाब की बात सुनकर उसको फ़ोन थमा दिया। रुबाब ने हमीद का नंबर मिलाया। अस्सलाम वालेकुम मामू, कैसे हैं आप? जी मामू, बस आपकी याद आ रही थी। हम बस अभी वापस आ रहे हैं। मैं कुछ दिन आपके घर रुकूंगी, आप स्टेशन से लेने आ जाएं मुझे। रुबाब की बात सुनकर शान ने उसको ना समझने वाली नज़रों से देखा। रुबाब ने अल्लाह हाफिज़ कहकर फ़ोन काट दिया और शान को दिया। ये क्या कहा अभी तुमने अंकल से? तुम घर जाओगी अपने? हाँ, मैं कुछ दिन वहीं रुकूंगी। रुबाब ने बेनियाजी से कहा। देखो रुबाब, अभी घर चलो, फिर मैं तुम्हें खुद छोड़ दूंगा तुम्हारे घर। और सॉरी, जो हुआ गुस्से की कैफियत में हुआ। शान अपनी गलती पर शर्मिंदा हुआ। मैंने अब मामू जान को कह दिया है, मना नहीं करूंगी अब। रुबाब ने लापरवाही से कहा। शान खामोश होकर बैठ गया। रुबाब हमीद के घर पर थी। अपने कमरे में बेड पर लेटी हुई शान के बारे में सोची जा रही थी। शायद मुझे उनकी बात सुन लेनी चाहिए थी, पर क्या सुनती? वो झूठ भी तो बोल सकती हैं। उन दोनों का चक्कर तो था ही और शान ने तो हद कर दी। उस जादूगरनी की वजह से मुझे थप्पड़ मार दिया। अब स्नो वाइट उस शख्स के साथ नहीं रहेगी। बस बहुत बर्दाश्त कर लिया, नहीं होता अब मुझसे और। रुबाब सोचती हुई हमीद के कमरे में गई। मामू जान, मैं आ जाऊँ? रुबाब ने दरवाज़ा नॉक करके पूछा। हाँ बेटा, आ जाओ। पूछ क्यों रही हो? हमीद ने मुस्कुरा कर कहा और अपनी हिसाब किताब वाली डायरी टेबल पर रख दी। आप सोए नहीं अभी तक मामू जान? रुबाब ने उनके सामने पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। हाँ, बस काम था, इसी में मसरूफ़ था। तुम बताओ, यहाँ कैसे? कुछ चाहिए था बेटा? हमीद ने मुस्कुराते हुए कहा। मामू, मैं आपसे एक बात कहूँ, क्या आप मानोगे? जी कहो ना बेटा। मामू, मुझे शान से तलाक चाहिए। रुबाब की बात सुनते ही हमीद हैरान हुए। बेटा, आप ये क्या कह रही हो? कोई झगड़ा हुआ है आप दोनों में? देखो, अगर ऐसा है रुबाब, तो इतनी छोटी बातों पर इतने बड़े फैसले नहीं करते, तो हम से भी मसला हल होता है। हमीद ने उसको समझाना चाहा। मामू नहीं, कोई छोटी बात नहीं, बात काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। छोटी बातें तो मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, बात बड़ी है तभी ये फैसला किया है। रुबाब ज़मीन पर नजरें टिकाती हुई बोली। ऐसी क्या बात है मामू? मैं इस बात का जिक्र नहीं करना चाहती, बस आप इतना जान लें, उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया है। रुबाब की बात सुनकर हमेशा परेशान हो गए। रुबाब उनके सीने से लगी रोने लगी। मामू, आपने हमेशा कहा है कि आप मेरे अब्बू की जगह हैं। आज क्या मेरे अब्बू होते तो वो सब चुपचाप बैठे देखते रहते ये सब? रुबाब रोती हुई बोली। बेटा, जो तुम चाहोगी वही होगा। हमीद उसके सर पर हाथ रखते हुए बोले।
شان کو آج نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ کوئی آج ٹی وی چلا کر رات کے 2 بجے مارننگ شو دیکھنے والی موجود نہیں تھی۔ شان کو اس کی کمی کا احساس ہوا تو اس نے خود ہی ٹی وی چلا دیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اتنی دیر میں اس کا فون بجا۔ حمید انکل اس وقت کیوں کال کر رہے ہیں؟ شان نے موبائل اسکرین میں دیکھتے ہوئے سوچا اور کال اٹینڈ کی۔ السلام علیکم انکل۔ وعلیکم السلام شان، تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ اس وقت سب خیریت ہے نا انکل؟ شان نے اپنی واچ میں ٹائم دیکھتے ہوئے کہا جہاں 3 بج رہے تھے۔ میں کل کراچی آ رہا ہوں، پھر صبح ہی بات ہوگی تم سے، اللہ حافظ۔ حمید نے کال کاٹ دی۔ اب تو کوئی تماشا نہیں کر دیا اس چوزی نے، شان نے اکتاہٹ سے سوچا اور پھر سے سونے لگا۔ السلام علیکم حمید انکل، کیسے ہیں آپ؟ شان آ کر حمید سے ملا۔ وہ کب سے اس کا ویٹ کر رہے تھے پر شان آفس تھا تو اس کی وجہ سے اس کو تھوڑی دیر ہو گئی۔ وعلیکم السلام۔ حمید صاحب کے چہرے پر سختی صاف دکھی شان کو۔ آپ بیٹھے نا انکل، میں معافی چاہتا ہوں آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ شان نے ان کو بیٹھنے کا کہا اور ان کے بیٹھنے کے بعد خود بھی بیٹھ گیا۔ کوئی بات نہیں، یہ کیا آپ نے بس چائے ہی لی ہے، کچھ اور بھی لیں؟ شان نے باقی لوازمات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ شان، میں یہاں تم سے اپنی خاطرداری کروانے نہیں آیا، تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ حمید صاحب ڈائریکٹ مدعے پر آئے۔ جی کہیں، میں سن رہا ہوں۔ شان اب پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہوا۔ دیکھو شان، مجھے نہیں پتا کہ تم دونوں کے بیچ میں کیا چل رہا ہے، غلطی کس کی ہے، پر غلطی تمہاری ہو یا رباب کی، تمہیں اس پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ حمید صاحب نے شان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا جو کہ اب غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ انکل، آپ کو رباب نے پتہ نہیں کیا بتایا ہے، پر آپ بھی اس کو جانتے ہی ہوں گے، وہ ابھی اتنی سمجھدار نہیں ہے کہ کسی بات کو سنجیدگی سے سمجھ سکے، اور جو میں نے کیا میں نے غلط کیا مانتا ہوں، لیکن رباب کو بھی تحمل سے کام لینا چاہیے تھا، اور اب اگر رباب چاہتی ہے کہ میں اس سے معافی مانگوں تو ٹھیک ہے، مانگ لوں گا میں معافی اس سے۔ شان نے بنا بحث کیے مسئلے کا حل نکالا۔ اس کو یہ لگا تھا کہ رباب اب معافی کی ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ بات اب معافی سے آگے بڑھ چکی ہے شان، میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی میری بیٹی پر ہاتھ اٹھائے، نہ ہی مجھے تم جیسے سمجھدار شخص سے ایسی امید تھی۔ اب رباب تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، وہ تم سے طلاق لینا چاہتی ہے۔ حمید صاحب نے پوری بات اس کے سامنے رکھی۔ شان کو رباب سے اس قدر بے وقوفی کی امید ہرگز نہ تھی۔ وہ مٹھیاں بھینچے غصہ ضبط کرتا رہا۔ انکل، رباب ابھی اتنی سمجھدار نہیں ہے کہ اتنا بڑا فیصلہ لے سکے، آپ بھی جانتے ہیں یہ بات تحمل سے بھی حل کی جا سکتی ہے۔ شان نے غصہ ضبط کرتے ہوئے تحمل سے کام لیا۔ رباب کا یہ آخری فیصلہ ہے اور میں اب اس کو منع نہیں کر سکتا۔ یہ پیپرز ہیں، ان پہ سائن کر کے بھیج دینا۔ حمید ٹیبل پر طلاق کے پیپرز رکھتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ٹھیک ہے، پر میری ایک شرط ہے، شان نے کہتے ہی حمید صاحب کے آگے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ کیسی شرط؟ انہوں نے پیچھے مڑ کر شان سے پوچھا۔ شان اپنی جگہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں آخری بار رباب سے ملنا چاہتا ہوں، اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، پھر جو اس کا فیصلہ ہوگا میں خاموشی سے مان لوں گا۔ آج ماموں جان پرنس سے بات کرنے گئے ہیں۔ سنو وائٹ اب پرنس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، وہ کافی زیادہ خروس ہے، اور سنو وائٹ کو تھپڑ بھی مارا۔ سنو وائٹ یہ سب نہیں چاہتی تھی، تو اب کیا سنو وائٹ پرنس سے الگ ہو جائے گی؟ کیا یہی اختتام ہوگا سنو وائٹ کی کہانی کا؟ رباب صوفے پر بیٹھی اپنی گہری سوچوں میں گم تھی، اور ٹی وی پہ کوئی کارٹون چل رہے تھے جو کہ نادر دیکھ رہا تھا۔ بس اب یہی کمی رہ گئی تھی، سسرال سے آ کر ناراض ہو کر بیٹھ گئی ہو یہاں، ایسی بھی کیا آفت آ گئی تھی؟ ضرور غلطی تمہاری ہی ہوگی، اس میں بھی کی ہوگی کوئی عجیب حرکت۔ رخسار بیگم نادر کے لیے نوڈلز لے آئیں تو اس کو بھی مفت میں سنا ڈالا۔ نوڈلز رباب کی بجائے خود جو بنانی پڑی تھی اس کو۔ حمید نے صاف منع کیا تھا کہ رباب کوئی کام نہیں کرے گی۔ رباب نے ایک نظر رخسار بیگم پر ڈالی تو ڈائن ابھی بھی خوش نہیں ہے، اس کا جادو تو چل گیا۔ یہ الگ ہی کہانی ہے جس میں سنو وائٹ کی نہیں بلکہ ڈائن کی جیت ہونے جا رہی ہے۔ رباب نے اس کو دیکھتے ہوئے سوچا، پر اس کو کوئی جواب نہیں دیا، آج وہ موڈ میں نہیں تھی۔ نادر کے دماغ میں شیطانی آئی تو اس نے 2 نوڈلز چلاکی سے اس کے بالوں میں ڈال دیے، اور رباب اپنی سوچوں میں اتنا مگن تھی کہ اس کو معلوم نہ ہو سکا۔ آج چھپکلی چپ کیوں ہے فاریہ باجی؟ روگ لگا ہے اس کو؟ نادر کو شاید اس کی خاموشی چبھی تھی، شاید۔ ہاں بھئی، لگ رہا ہے کسی گہرے صدمے میں ہے۔ فاریہ بھی اس کے بولنے کو مس کر رہی تھی۔ رباب نے بس ایک نظر دونوں کو دیکھا اور پھر سے خاموش بیٹھ گئی۔ اتنے میں حمید آئے۔ رباب ان کو دیکھ کر ان کی طرف دوڑی۔ ماموں جان، کیا ہوا؟ کیا وہ طلاق دیں گے؟ رباب نے حمید کے پاس آ کر کہا۔ وہ تم سے ملنے آیا ہے، ایک بات کر لو اس سے۔ حمید کے کہنے پر رباب نے دروازے میں کھڑے شان کو دیکھا جو رباب کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ماموں جان، مجھے ان سے نہیں ملنا۔ رباب نے منہ بنایا۔ بیٹا، ایک بار بات کر لو، میرا کہنا ہی مان لو۔ رباب حمید کو منع نہ کر سکی اور شان کے پیچھے لان میں چلی گئی۔ دونوں ساتھ چل رہے تھے پر دونوں کی طرف سے مکمل خاموشی تھی۔ رباب تو اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ طلاق لینے کا کیوں سوچا اتنی سی بات پر؟ شان نے خاموشی توڑی۔ اتنی سی بات نہیں، آپ کا کسی اور کے ساتھ چکر، اور اس کی وجہ سے مجھ پر ہاتھ بھی اٹھایا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ شان نے اس کی بات سن کر اس کی طرف دیکھا۔ رباب نے اس کو دیکھا جو ہر بار کی طرح آج بھی سنجیدگی چہرہ لیے کھڑا تھا۔ تم غلط سمجھ رہی ہو، میری ایک بار بات سن لینی چاہیے تھی تمہیں۔ آپ کوئی بہانہ بنا دیتے، ظاہر ہے
रुबाब ने रूठेपन से बोली, मुझे ज़रूरत नहीं बहाने बनाने की, और खामोशी से चल रही हो तुम घर मेरे साथ, और अपना ड्रामा बंद करो अब। शान ने के इस तरह बात करने पर रुबाब ने उसको घूरा। मनाने की बजाय वो और रोब झाड़ रहा था। और मैं ये ड्रामा बंद ना करूँ तो जो होगा इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। शान के कहने पर रुबाब की छोटी सी नाक गुस्से से लाल हो गई। अब तो मैं भी देखती हूँ कैसे रोकता है मुझे कोई। वो भी जिद की पक्की थी। वो जाने लगी तो शान ने उसको बाजू से पकड़ कर रोका। ये वह हर वक्त उल्टी हरकतें क्यों करती रहती हो तुम? इंसानों की तरह रहना नहीं आता तुम्हें? शान ने उसके बालों में देखता हुआ बोला, क्या मतलब? अब क्या किया मैंने? रुबाब उसके खफ की भरे चेहरे को देखते हुए बोली, ये क्या है? शान ने उसके बालों से 2 लंबे नूडल्स निकालकर उसके सामने लहराए। रुबाब ने मन ही मन में नादर को कोसा। ये नादर का बच्चा, छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। रुबाब शर्मिंदा हुई तो गुस्से से कहकर वहां से चली गई। इसका कुछ करना होगा, शान ने उसको जाता हुआ देखकर सोचा। मारिया के मोबाइल में शान की कॉल आई। वो कॉल अटेंड करने बाहर चली गई। खोटे सिक्के, तुम्हें शर्म नहीं आती? बालों में नूडल्स क्यों रखे? रुबाब नादर के पास खड़ी होकर चिल्लाई। शुक्र है तुम अपने असली रूप में तो आई। नादर के बोलने पर रुबाब पैर पटकती हुई वहां से चली गई। वो आज फारिया और नादर के इसरार पर ना चाहते हुए भी उनके साथ शॉपिंग पर आई थी। नादर और फारिया ने उसको ये कहकर बाहर भेज दिया कि वो गाड़ी का इंतज़ार करे, वो लोग पे करके आते हैं। वो खड़ी होकर गाड़ी का इंतज़ार करने लगी। इतने में एक काली गाड़ी उसके सामने रुकी और उसमें से एक आदमी निकला। वो रुबाब की तरफ बढ़ा, उसके मुंह पर हाथ रखे उसको गाड़ी में बिठाने लगा। रुबाब ने काफ़ी मज़ाहमत की लेकिन खुद को इस हट्टे कट्टे से छुड़वा ना सकी। कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे, मैं पुलिस को बता दूंगी। तुम लोग नहीं जानते मेरे मामू को। सुन नहीं रही क्या? तुम लोग छोड़ो मुझे, मुझे क्यों अगवा किया है? रुबाब चिल्लाई। पर इन 4 लोगों ने उसकी सुनी अनसुनी कर दी और एक आदमी ने उसके मुंह पर पट्टी बांध दी ताकि उसका मुंह बंद रह सके। तुम किडनैप हो चुकी हो, एक आदमी उससे बोला। वह एक अंधेरी गुप्त जगह पर थे। किडनैप? क्या? पर क्यों? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? रुबाब रोती हुई बोली। उस आदमी ने अपने चेहरे से मास्क उतारा। और ये क्या? रुबाब जो चेहरा देख रही थी अपना डर भूल गई। वो शान था। शान आप? रुबाब हैरान हुई। हाँ, तुम अपने शोहर के हाथों ही किडनैप हो चुकी हो, तलाक लेने की सज़ा में, शान ने मुस्कुराते हुए कहा। और एकदम लाइट्स जगमगा गई। वो अपने और शान के ही कमरे में थी और फारिया, नादर और आयशा ने भी अपने चेहरों पर से मास्क उतारा। उन्होंने ही शान की मदद की थी ये सब करने में। सरप्राइज, सब एक साथ बोले। तुम लोग? रुबाब हैरान हुई। भाई मेरा भी उदास था तुम्हारे बगैर बहुत, इसलिए मैंने मदद की इनकी। आयशा मुस्कुराते हुए बोली। हाँ, हम भी बोर हो गए थे तुम्हें चुप बैठा देखकर। फारिया भी मुस्कुराई। छिपकली ऐसे खामोश अच्छी नहीं लगती। नादर के कहने पर वो इन तीनों से गले लगी। कितनी अच्छी हो तुम लोग, रुबाब ने मोहब्बत से कहा। वो सब गए तो रुबाब शान की तरफ मुड़ी और जैसे ही कुछ बोलना चाहा, शान ने उसके लबों पर उंगली रख दी। अब बस, आज तुम नहीं मैं बोलूँगा। उस दिन जो तुमने जो देखा वो आधा सच था। अनुषा ने मुझसे अपनी फीलिंग्स का इजहार किया, पर मैंने उसको ये कह दिया कि अब मैं किसी और का हूँ और उसके साथ वफा निभाना चाहता हूँ। बस फिर वो भी समझ गई। इसके अलावा कुछ ना था। और एक बात, मैं तुम्हें शादी के बाद से नहीं बल्कि पहले से ही जानता हूँ। एक दफ़ा तुम कॉलेज से वापस आ रही थी, मैं इन दिनों हैदराबाद में था और रास्ते में तुम्हें देखा। तब से तुम्हें अपना बनाने का ख्याल मेरे दिल में आ गया। उसके बाद मुझे पता लगा कि तुम हमीद साहब की बेटी हो, तो मैंने अम्मी से कहकर तुम्हारे यहाँ रिश्ता भिजवा दिया। शान उसको सारी सच्चाई बता रहा था। रुबाब के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी होती चली गई। पर आपने मुझे थप्पड़ मारा, इसका क्या? रुबाब के कहने पर शान मुस्कुराया। शर्मिंदा हूँ, तुमने इल्ज़ाम ही ऐसा लगा दिए मुझ पर। मुझे गुस्सा आ गया। अपने खरोस को माफ़ कर दो और चलो एक थप्पड़ तुम मुझे भी मार लो। तुम्हें बदला लेने बिना चैन नहीं आना, जानता हूँ मैं। शान ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। नहीं नहीं शान, मैं आपको थप्पड़ कैसे मार सकती हूँ? नहीं कर सकती मैं ऐसा, और आप मुझे पहले से जानते थे। मतलब हमारी लव मैरिज थी और आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, इसका मतलब? रुबाब एक्साइटेड होते हुए बोली। मोहब्बत? अब तो तुम मेरी बीवी हो। अब बात मोहब्बत से आगे बढ़ चुकी है। शान ने उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर ऐसे खरूस खरूस क्यों रहते थे मेरे साथ? रुबाब मुंह बनाती हुई बोली। अब वो तो मेरी नेचर ही ऐसी है। शान ने कंधे उचकाकर कहा। मतलब स्नो वाइट का हम सफ़र खरूस ही है? कौन स्नो वाइट? शान उसकी बात नहीं समझा। कुछ नहीं, बस आप नहीं समझेंगे, लंबी कहानी है। और तुम्हें पता है तुम्हारा एडमिशन भी करवा लिया है यूनिवर्सिटी में, पर बस इम्तहान देने जाओगी। ज़्यादा देर तुम्हें दूर नहीं रख सकता। शान के कहते ही रुबाब की आंखें चमक उठी। कितने अच्छे हैं आप। रुबाब मुस्कुरा दी। शान भी उसको देखकर मुस्कुराया। रुबाब आईने में खुद को देखती हुई लिपस्टिक लगा रही थी। आज ताहिरा का वलीमा था तो वो दोनों जाने की तैयारी में थे। उसने आईने से पीछे बैठे शान को देखा, जो अपने 6 माह के बेटे को गोद में लिए रुबाब के तैयार होने का इंतजार कर रहा था। शान के चेहरे पर उकताहट आ चुकी थी इंतजार करते करते। स्नो वाइट की कहानी का हैप्पी एंड। स्नो वाइट ने तो सोचा भी नहीं था कि उसको इतना अच्छा प्रिंस और इतना अच्छा प्यारा सा बेटा मिलेगा।
अब स्नो वाइट बहुत खुश रहेगी। प्रिंस थोड़े खड़ूस हैं तो क्या हुआ, खड़ूस होने के साथ साथ केयरिंग भी बहुत है। रुबाब ने मुस्कुराते हुए सोचा, मैडम और कितनी देर लगाओगी, जल्दी करो, फंक्शन ही ख़त्म ना हो जाए। शान आखिरकार बोल पड़ा, मैं तो बस तैयार हूँ, इस चूजे के ये कपड़े ठीक हैं। रुबाब आदिल को देखते हुए बोली, रुबाब आदिल पर भी नाम रखना ज़रूरी था क्या? शान उसकी आदत से परेशान था। हाँ ना, इतना सा है चूज़ा, प्यारा सा। रुबाब आदिल को उठाते हुए बोली, उफ, चूज़े और चूज़ी में फंस गया बेचारा शान। शान अपना कोट ठीक करता हुआ बोला, चले मेरे खरूस हम सफ़र। रुबाब ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो मेरी सरफिरी हम सफ़र। शान भी उसका हाथ थामता हुआ बोला। और ऐसे ही दो हम सफ़र अपने खूबसूरत सी मंजिल की तरफ बढ़ गए। दोनों की ज़िंदगियों में अब इत्मीनान और सुकून था। सबके रवैये भी रुबाब के साथ बेहतर हो गए थे। कभी कभी ज़िंदगी का खूबसूरत सफ़र हमारी ख्वाहिशों के मुताबिक शुरू नहीं होता, बल्कि कुछ लोग होते हैं जो इस सफ़र में आकर इसको खूबसूरत बना देते हैं। ना चाही शुरुआत कभी कभी खूबसूरत मंजिल भी दिखा देती है। जैसे रुबाब का ना चाहा हुआ सफ़र एक खूबसूरत सफ़र में तब्दील हो गया। जिसको शादी से इतराज़ था, पर उसको क्या पता था कि जिस रिश्ते में वो जुड़ने जा रही है वो उसकी ताकत बन जाएगा। इस घर में बातें सुनने को मिलती थी, अब पर इस घर में रुबाब सर उठा के चलती कि हाँ, ये मेरा अपना घर है, यहाँ कोई मुझे बातें नहीं सुना सकता। और शान, उसने तो जो चाहा उसको वो मिल गया। रुबाब की बचकाना हरकतें उसको कम ही पसंद थी, पर उसको उनकी आदत लग चुकी थी और अब उसको रुबाब की हर बात अच्छी लगने लगी थी। इसके साथ ही ये डिफरेंट और ख़ूबसूरत सा नावल अपने इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद करती हूँ कि ये नावल आपको पसंद आया होगा। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।